अ लार्ज स्केल डेवलपर टू अ मिड स्केल डेवलपर? क्या ऐसी 3 चीजें करता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बनता है? देखिए, सबसे पहले तो एक लार्ज स्केल डेवलपर सक्सेसफुल बनता है उसकी बहुत बड़ी सोच की वजह से। दूसरा, खर्च करने की एबिलिटी। What are the 3 top challenges mid scale developer faces? मिड स्केल डेवलपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है What is the biggest blind spot for these large scale developers? nowadays the biggest blind spot for them is In the large scale sector particularly, what challenges in terms of operations do they face? Welcome to the Build Legacy Show, जहां हुई रियल बात रियल बंदों के साथ, powered by DR Build. Today, I have the honor to have a very special guest for which I have come down to Nagpur to get his time, and I'm sure for every real estate developer or any person who's related to real estate sector is going to get tons of value because what he has created is in itself a history. He is an ocean of knowledge, this is what I can say, and that too pertaining specifically to real estate sector. From a panwala, I mean his father was a normal panwala, and from that humble background, coming and envisioning to create a dent in the real estate industry, to create not just income for himself, but for so many lives, and creating an impact on this entire real estate sector really is truly heart-touching and inspiring. This is all what I can say. He is not just an entrepreneur, a business owner, a real estate coach, but he's an author. He is running Asia's one of the largest real estate coaching and mentoring training company and has touched lives of thousands of people. He has actually interviewed hundreds of real estate top developers, right from those who are just starting their journey to mid-size, those who have already done about 4 to 5, 10 projects, and then to large-scale listed companies, developers, and their CEOs as well. His flagship program called RGC is truly transformational and has touched lives of so many people in this real estate sector. I am truly happy and I'm truly honored again to have him over besides the couch, and to start this conversation I am feeling super excited because I have a long list of questions today. And if you've not subscribed to the channel, do subscribe, do share, do comment what content more you want from us. We will definitely get more exciting speakers out for you. But yes, without letting you wait moreover, let's dive into the real conversation with Dr. Amol Maurya. Yes, sir. First of all, thank you so much for coming up on this show of Build Legacy, जहाँ होती है रियल बात रियल बंदों के साथ. How's been your story so far? कैसे आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? कैसे रियल एस्टेट सेक्टर में आए? Over to you now. थैंक यू सो मच अंकुर भाई. सबसे पहले तो मैं आपका और पूरी ऑडियंस को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस शो में मुझे इनवाइट करने के लिए. और जितना ट्रस्ट आपने शो किया है, आई विल बेट ऑन दिस कि अगले 1-1.5 घंटे में जब वो ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे सुनेंगे तो उन्हें इतनी सारी चीजें रियल एस्टेट की समझ में आएगी जो शायद मैंने आज तक किसी और वीडियो में नहीं दिए. ब्यूटीफुल. और 1200 से ज्यादा वीडियोस रियल एस्टेट के प्रोड्यूस करने के बाद आज हमारे चैनल पे अवेलेबल है. एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल होने के बाद भी मैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स आज रिवील करने वाला हूं जो बहुत सारे बिल्डर्स हो, डेवलपर्स हो, चाहे इन्वेस्टर्स हो, उन्हें नहीं पता. अब जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? जर्नी की शुरुआत हुई एक छोटा सा बच्चा इतवारी रेलवे स्टेशन में. पिताजी का छोटा सा पान का शॉप था, मम्मी कपड़े सिलती थी, परिवार में किसी ने 10th तक भी पढ़ाई नहीं की थी. वहां से पहले MBA, फिर नेट, फिर भारत की पहली PhD और फिर एशिया का नंबर 1 चैनल, 6 से ज्यादा रियल एस्टेट कंपनीज. आज 600-700 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ काम कर रहे हैं. 500 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक के टर्नओवर वाले 50 से ज्यादा CEOs के इंटरव्यू जब हमने लिए हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स के लिए 2011 से लेकर 2016 के बीच. और 2018 में मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों से फुल टाइम हमारी PhD डिग्री अवार्ड हुई. भारत की पहली PhD इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट. कोचिंग ट्रेनिंग तो हम पहले भी करते थे, लेकिन 2011-12 से जब से मैंने PhD रियल एस्टेट में शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के साथ ज्यादा काम करना चाहिए. पर ये विचार मन में क्यों आया? विचार आया जब मैंने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रीरा आने से पहले कई लोग पैसा तो लगाते थे,
लेकिन उन्हें सही प्रोडक्ट नहीं मिलता था, सही लीगल पेपर्स नहीं मिलते थे और उनके साथ फ्रॉड हो जाता था। Yes. एक मनीषा नाम की लेडी 2012 में मेरे पास पेपर लेकर आई और कहा कि भैया आप पीएचडी कर रहे हो, देखो मेरी रजिस्ट्री क्यों नहीं लग रही। मैंने पेपर चेक किया, वहां मुझे लगा 4-5 मीटर के रोड है, ओपन स्पेस नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी नहीं है, ये 20,000 रुपए कमाती है, 10,000 रुपए की ईएमआई भरती है, इसके साथ तो फ्रॉड हो गया। पर मैं उसे बोल नहीं पाया। उसने डिसाइड किया कि इस इंडस्ट्री में अब लोगों तक सही नॉलेज पहुंचना जरूरी है। जब बिल्डर डेवलपर सही काम करेंगे तो लोगों को सही प्रोडक्ट मिलेगा। और वो जो एक अंदर से एनर्जी कहिए या एक कॉल आया और मैंने ये कोचिंग ट्रेनिंग की तरफ पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग पे किया। आज 1000 से ज्यादा बिल्डर डेवलपर के साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल हमारे हो चुके हैं, कोचिंग हो चुकी है। चाहे लो सेगमेंट हो, मिड सेगमेंट हो, शुरू कर रहे हो या बड़े लेवल पे लिस्टेड कंपनीज हो, आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मिशन वहीं से आया और इसी मिशन पे हमारी नेक्स्ट पहली बुक तो वैसे भी नेशनल बेस्टसेलर है, रियल एस्टेट गेम चेंजर्स। लेकिन अब सेकंड बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। वाओ, सो हार्ड। तो मिशन यही था, 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करूं, बिल्डर डेवलपर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब रियल एस्टेट में क्रिएट हो सकते हैं। बस वहीं से ये जर्नी की शुरुआत हुई और ऐसा लगा कि इस जर्नी के थ्रू जब हमने बहुत सारे लोगों के थ्रू आज करीब 50,000 से लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट कर चुके उन सीईओज के थ्रू, बिल्डर डेवलपर के थ्रू, जिनको हम कोच कर चुके। तो बस यही एक छोटी सी शुरुआत से ये जर्नी यहाँ तक पहुंची है और इसमें बहुत सारी लर्निंग्स प्रैक्टिकली रही उन एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो कुछ ऐसे भी सीईओज थे अंकुर भाई की जिन्होंने जिंदगी में कैमरा देखा नहीं था। 2019 से लेकर 2022 के बीच जब हमने 100 सीईओज के इंटरव्यू लिए, उस दौरान कई लोगों ने जिंदगी में कैमरा नहीं देखा था। वो सिर्फ अपने साइड पे पसीना बहाते थे, खून बहाते थे। तो वो जर्नी सामने आई, लोगों को समझ में आया कि रियल एस्टेट क्या है, एक रियल हीरो क्या होता है, कौन सा आदमी 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है। और वहां से ये प्रैक्टिकल चीजें लोगों तक पहुंची और शायद लोगों का इतना प्यार मिला कि आज ईशा का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल हम लोग रन कर रहे हैं। With viewers from more than 29 countries across the world. Amazing, so heart touching. I am just having goosebumps. This is all what I can say. And this mission is so empowering that the only wish is coming straight from my heart for you is more power to you, brother. Thank you so much. Thank you. So what can you expect from this podcast? Let me just break down that out for you because I have understood where is he coming from. So I'm sure from a large scale listed developer, if they want to even grow further, to a mid scale developer, let's say who've done 4 to 5, 8 projects, but they are becoming stagnant in their growth or reached a plateau and they want to grow further. Or let's say the third category is someone who is just willing to start but have no direction. I'm sure ऐसे भी लोग होते होंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा लैंड बैंक है, पिताजी ने बहुत सारी जगह खरीद रखी है, पर बच्चा हमें अप्रोच करता है कि मुझे नहीं पता कि मैं बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं। Beautiful. So if you are one of them, any of 3, you're going to get tons of value. And post this, we are also going to touch upon the entire customer journey, about sales, about consumer behavior, because he has done PhD into it. So I'm definitely going to take a lot of value and his wisdom nuggets and put that out into this podcast for you. So just keep listening till the end. Yes, Amol bhai. So my first question to you would be, एक लार्ज स्केल डेवलपर, एक लिस्टेड डेवलपर क्या ऐसी 3 चीजें करता है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बनता है? देखिए, सबसे पहले तो एक लार्ज स्केल डेवलपर सक्सेसफुल बनता है उसकी बहुत बड़ी सोच की वजह से। अगर माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो तो ही वो लार्ज स्केल डेवलपर बन पाएगा। Okay. क्योंकि रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाकी बिजनेस से कहीं भी मैच नहीं होते। तो वो जो उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, साथ में जो उसका स्ट्रांग माइंडसेट है और एक टीम बिल्ड करने की एबिलिटी है, वही उसे आगे जाकर एक बहुत बड़ा डेवलपर बना पाते हैं। दूसरा, खर्च करने की एबिलिटी। पूरे देश में मैंने देखा है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, बोलते बहुत सारे लोग हैं लेकिन जब खर्च करने का समय रियल एस्टेट में आता है तो नो वन इज रेडी। No one is ready for hiring. No one is ready for giving quality construction. No one is ready for paying high. अब अगर आप पीनट्स फेंकोगे तो बंदर को ही अट्रैक्ट करोगे। इफ यू रियली वांट टू ग्रो, बड़ी कंपनियां सही रिक्रूटमेंट्स करती है, सही सिस्टम्स बनाती है, सही माइंडसेट के साथ बड़े एक्शंस लेती है और बहुत फियरलेस तरीके से बड़े एक्शंस पे इंप्लीमेंटेशन के प्लान बनाती है। ये मैंने मिड सेगमेंट और स्मॉल पे बिल्कुल नहीं देखा है।
ब्यूटिफुल. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं what are the biggest challenges these large real estate developers are still facing, what would they be? The biggest challenge according to me, और ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, बड़े से बड़े डेवलपर भी जो भी फेस कर रहे हैं वो है बहुत लंबा वे ऑफ कम्युनिकेशन. जो ओनर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसे ये नहीं पता होता कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है. वो तो बहुत अच्छा बंदा है, उसने कंपनी बहुत बड़ी कर दी, बट अब इतनी गैप हो गई उसके टॉप पीपल के बीच में और इसके बीच में कि अभी कम्युनिकेशन का चैनल ब्रेक हो गया. वहां आते हैं इश्यूज बड़ी कंपनीज. दूसरे बड़ी कंपनीज को इश्यूज तब आते हैं जब वो प्रोडक्शन बहुत सारा कर देती है पर बेस्ड ऑन दैट उनका उतना मार्केटिंग नहीं हो रहा होता है. मैंने ऐसी भी बड़ी कंपनीज देखी है जो लिस्टेड है, जो हमसे कोचिंग भी ले रहे हैं, लेकिन एक छोटा लोकल प्लेयर उनसे 4 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट उनकी सिटी में कर रहा है. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? When I ask this question, so then they come with n number of excuses. I have seen बड़ी कंपनीज जो हमारे पास आई है कि XYZ रिकवरी और CRM डिपार्टमेंट की वजह से हमारा माल तो बहुत बिक रहा है बट रिकवरी नहीं होती है. So they have a bigger problem. They want to train 30 only CRM people. I have seen bigger companies 50,000 worth valuation. बट भाई माल इतना बना है, A क्लास लीजिंग, A क्लास रिटेल, बट लीज नहीं हो पा रहा है. तो दे वांट टू ट्रेन 30 पीपल कि भाई कैसे करे, लीज कैसे करे, इन्वेंट्री पड़ी है. तो एक लेवल के बाद क्या होता है, ओनर का कनेक्शन कम होता जाता है. करेक्ट. तो ग्राउंड फीडबैक आप बोल रहे हो वो नहीं आता है. ग्राउंड फीडबैक नहीं आता. लीडर्स कभी कभी गलत हायर हो जाते हैं. लोग कंपनी को नहीं छोड़ते रियल एस्टेट में, ऐसे लीडर को या बॉस को छोड़ते हैं जो उन्हें हरास करता है, परेशान करता है. बट ये टॉप लेवल पे एमडी को पता ही नहीं चलता, चेयरमैन को पता ही नहीं चलता. दैट इज द ऑन ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स फॉर मेनी कंपनीज. और जो बड़े से बड़े रिसर्च एजेंसीज की वो हेल्प कभी लेते भी है, वो सिर्फ टियर 1 सिटी का ही डेटा रखते हैं. भारत में टियर 2 टियर 3 सिटीज का डेटा कभी होता ही नहीं है रिसर्च एजेंसी. करेक्ट. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लार्ज स्केल रियल एस्टेट डेवलपर के लिए क्या लिस्टेड होना जरूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं भारत में जो बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अभी लिस्टेड नहीं है. बट लिस्टेड होना बहुत अच्छी बात है. अगर आप एक लिस्टेड कंपनी रियल एस्टेट में बन जाते हैं, ऑब्वियस है लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ता है. और लिस्टेड होने के साथ साथ अगर आपके एक्शंस भी उस तरह से मैच कर रहे हो तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके फ्यूचर बायर्स पे, इनफैक्ट आपके टीम पे भी. आपको अच्छे लोग चाहिए. अच्छे लोग कब आएंगे? जब उन्हें विश्वास होगा कि आपकी कंपनी का उनका बेहतर भविष्य है. बेहतर भविष्य कब दिखेगा? जब उन्हें लगेगा कंपनी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है मार्केट में. सो कंटेंट और क्रेडिबिलिटी दो चीजें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, जिससे भविष्य में कन्विक्शन आता है क्लाइंट को भी और एम्प्लॉय को भी कि आपके साथ काम कर सकते हैं. सो दैट इज द फैक्टर व्हाट आई फील. सो व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट फॉर दीज लार्ज स्केल डेवलपर्स? Nowadays the biggest blind spot for them is कि भाई प्रोडक्शन के हिसाब से कई बार बड़े प्लेयर तो फिर भी रिसर्च कर लेते हैं, पर मिड और लो सेगमेंट में तो ये होता ही नहीं है. बट बड़े प्लेयर भी कहीं ना कहीं थोड़े गलत जा रहे हैं जब उनका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है. अगर आप मार्केट के कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को समझकर वो रेंज, वो क्वालिटी और वो साइज का प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है, तो आपकी इन्वेंट्री रुक सकती है. और अगर 5 बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद 6वें प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री लंबे समय के लिए रुक गई तो एक प्रोजेक्ट में ही 10 प्रोजेक्ट का प्रॉफिट स्टक हो जाता है. Can you explain in a form of a case study for this what you said? Yes, see, recently when I was having a real estate game changer CEO coaching clarity call with a builder, they are having at least 10 townships running. My God. And in big metro cities. So what was the problem? Why they came to us? देखिए, आपके पास कोई अगर आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई गैप है. Correct. Seriously. Absolutely. So when I've done a clarity call with the managing director and the marketing director, the problem was they have 288 full-time employees. Okay. The company valuation was almost 8,000 to 10,000 crores. Okay. But the problem was कि जो पुराने लोग हैं कंपनी के अंदर, they are not performing and they are not willing to perform. स्किल बहुत है बट विल खत्म हो चुका है. करेक्ट. अब ऐसे लोगों को क्योंकि पुराने निकाल भी नहीं सकते, करेक्ट, रिजल्ट भी नहीं निकाल पा रहे, करेक्ट, सिस्टम वही चल रहा है जो दादाजी के जमाने से चल रहा था. क्योंकि मान लो तीसरी
तो ओनर भी चेंज होने को रेडी नहीं है, कंपनी के लोग भी बदलने को रेडी नहीं है, जबकि द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। सो ये सब बड़े बड़े लेवल पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा होता है, तभी जाकर मैं ये चीजें आपको बता पा रहा हूं। तो अमोल जी, आई हैव ऑब्जर्व्ड very closely that there are companies who are very deep in one particular state, despite they're listed companies, right? But they are not going beyond their own city. Right. Why is that? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि उन्हें एक कंफर्ट जोन हो गया है उसी सिटी में काम करने का। Okay. एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि उनका क्लाइंट बेस भी यहीं से और उनके एम्प्लॉयज भी यहीं से है, और किसी नई सिटी में जाना मतलब एक तो हर सिटी हर स्टेट में लॉस चेंज होते हैं, करेक्ट, लीगैलिटीज चेंज होती है, करेक्ट, और कभी कभी भारत में रीजनल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी नए सिटी में एक्सपांड करना। बिल्कुल होता है। अब जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो मल्टीपल सिटीज में ऑपरेट कर रहे हैं, दे हैव अ वेरी बिग विजन। अगेन कमिंग टू द विजन व्हाट यू स्टार्टेड। यस, दे हैव अ सिस्टम इन प्लेस। भाई कोई 50,000 करोड़ की कंपनी का ओनर किसी नए सिटी में जब प्रोजेक्ट शुरू करता है तो वो उधर जाके कुछ नहीं करता है, वो लैंड एक्विजिशन के बंदे को भेजता है जो लीगल टीम के साथ जाके लैंड एक्वायर करता है। फिर एक प्रोजेक्ट हेड आता है चैनल पार्टनर हेड को लेके, डायरेक्ट सेल्स के हेड को लेके, फाइनेंस के हेड को लेकर, और ये 6 बंदों की टीम, साथ में 6 और जूनियर्स वहां 500 लोगों से काम करवा के 500 करोड़ का माल 3 दिन में भी बेच देते हैं। दैट इज द सिस्टम बिगर कंपनीज फॉलो। जो मिड या लार्ज में भी कुछ ऐसी कंपनियां जो एक ही सिटी में लिमिटेड है वो नहीं कर पा रहे। करेक्ट। या दूसरा, जब ऐसा समय आता है ऐसा कुछ करने का, तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट अंदर से उन्हें सपोर्ट नहीं करता कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है उतना बड़ा पे स्केल देने की जो वो कंपनीज दे पा रही है, तो जहां जैसे हो वैसे ही रहो। So again, coming back to the comfort zone, I think that's the one thing which you would like to emphasize because of the vision and risk-taking capacity. Is that what you mean? Yes, but whatever I'll be saying is because I had a deep interaction with these players. Correct. 500 करोड़ वाले को भी बहुत अच्छे से समझा, बिल्डर हो चाहे डेवलपर हो, चाहे 2,000 करोड़ का काम कर रहा हो, चाहे 5,000 करोड़ का टर्नओवर हो, चाहे 20,000 चाहे 50,000 करोड़ की कंपनी के ओनर्स क्यों ना हो, चाहे सीईओ हो, सीएक्सओ हो, जब इनसे बात हुई, इनके माइंडसेट को देखकर, इनकी एक्शन टेकिंग एबिलिटीज को देखकर, भारत में कई ऐसी स्टोरीज हैं जहां जीरो से लोग 50,000 करोड़ वर्थ की कंपनीज भी बना पाए हैं। तो वो क्या डिफरेंस था उनकी एक्शन टेकिंग एबिलिटी में जो उस बंदे में नहीं था जो 500 करोड़ में स्टक है। ये सब चीजों को जब हमने इतने डीपर लेवल पे समझा, देश के इतने बिल्डर डेवलपर के साथ काम किया, 1-to-1 उनकी प्रॉब्लम को समझा, तभी रियल एस्टेट गेम चेंजर जो हमारा मॉड्यूल है, चाहे सीईओ कोचिंग हो, चाहे चैंपियन ट्रेनिंग हो, चाहे सिस्टम कोचिंग हो, इसमें लोगों को रिजल्ट्स मिल पाते हैं क्योंकि हम ऑन ग्राउंड बातें करते हैं कि ये 500 करोड़ का बंदा कब अटका, क्यों अटका, वाओ, और उसने नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए दूसरे ने क्या किया जब वो 1,000 करोड़ पे पहुंचा। Nice, nice, nice. So that is the thing I want to tell everyone कि ये सब चीजों को जब आप समझेंगे so you'll realize कि रियल एस्टेट एक बहुत अलग साइंस है। Yes. No doubts on that. It's unlike FMCG, unlike any other sector. It's a very different sector, even what I have observed. So coming to again to a fresh perspective, you said that you've coached hundreds or probably thousands of people, even from large scale sector. So now, in the large scale sector particularly, what challenges in terms of operations do they face? मतलब कोई होता है चैलेंज या नहीं होता है? नहीं बिल्कुल होता है। देखिए क्या होता है ना, बड़े बड़े प्लेयर आज प्रोजेक्ट समय पे डिलीवर नहीं कर पाते। Okay. जो उनकी सेल्स टीम कमिट कर देती है उसके हिसाब से डिलीवरी मैच नहीं होती। और मैं ये बहुत बड़े प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग। आई एम एन इन्वेस्टर एज वेल कि मैंने उनके प्रोडक्ट भी बाय करके उनके कम्युनिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोगों के ओपिनियन समझी है। वाह। सो आपका जब डिलीवरी आपके कमिटमेंट से मैच नहीं होता है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में वो बहुत डेंजरस हो जाता है। देखो आपको ये नहीं समझेगा कि आपके 10 क्लाइंट वापस क्यों चले गए, बट क्योंकि आपके 5 पुराने प्रोजेक्ट क्लाइंट उनसे कभी मिले, बात की, या किसी क्लब में या किसी पार्टी में उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया तो ये 10 ने कैंसिल करा लिया। बट यू विल नेवर इमेजिन हाउ दिस हैज हैपेंड। Actually, and you being PhD into consumer behavior, I'm sure no better than you will understand this perspective very, very deeply. Awesome. So, again, coming to the point of from operations, is there any particular challenge of sales also do these large real estate sharks do face? Yes, a very important one. देखिए,
ये सब हैंड इन हैंड चलता है। अगर अच्छा प्रोजेक्ट है, लीगल सही है, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो सेल्स बहुत अच्छी होगी। करेक्ट। क्योंकि आपका ब्रांडिंग अच्छा हो रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंची तो सेल्स निकल के आ रही है। अब सेल्स के बाद अगर रिकवरी सही हो रही है, सीआरएम भी सही काम कर रहा है, तो ऑपरेशन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि फंड फ्लो बना हुआ है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं। ट्रू। कितना भी पैसा जेब से लगा लीजिए, रियल एस्टेट एक ऐसा समंदर है, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका सेल्स बढ़िया नहीं चल रहा है। और उसका डिपेंडेबिलिटी है रिसर्च के हिसाब से, प्रोडक्ट सही बनाए कि नहीं। सेल्स में तगड़े बंदे हैं, बट प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट लोगों की एक्सपेक्टेशन को मैच ही नहीं हो रहा, तो बिकेगा कैसे? ये कोई अलादीन के चिराग से निकले हुए जीनी नहीं होते सेल्स के बंदे। यस। कि आपने वो चिराग घसा और सब हो जाएगा। यू रिक्वायर अ प्रोडक्ट विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इज बेस्ड ऑन रिसर्च। तो फिर फ्लो होता है, फिर ऑपरेशन सही चलता है, क्योंकि पैसा सही आ रहा है। इच्छा होने से ऑपरेशन अच्छा नहीं चलता। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सो इट्स अ साइकिल। That's what I believe. Awesome. So all the large scale developers, they seem to be pretty much professional. Do they also face certain operational challenges? 100%. देखो, बाहर से बहुत प्रोफेशनल होने का मतलब ये नहीं है कि अंदर प्रॉब्लम नहीं। Okay. आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। That's interesting. बट जब वो कोई वाइस प्रेसिडेंट या कोई सीईओ या सीएचआरओ when they approach us, then they start telling us, क्योंकि हम देश में किसी के भी साथ तब तक काम नहीं करते जब तक उनका प्रॉब्लम और हमारा सॉल्यूशन मैच नहीं होता। So we understand their gaps and their problems, and then we come to know in the third or the fourth round कि ये real issue ये फेस कर रहे हैं, जिसका they are looking for a solution, but they are not getting। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल है। प्रॉब्लम हो सकता है रेडी इन्वेंटरी पड़ी है, जा नहीं रही है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फंड फ्लो रुका हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम बड़ी कंपनियों में भी हो सकता है कि ओवर फंडिंग लेकर रखी हुई है और बहुत सारा इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी, जिसके वजह से कंपनी के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। भारत में से कितनी बड़ी कंपनीज है जिनके प्रोजेक्ट्स आज भी स्टक्ड है या समय पे डिलीवर नहीं हो पा रहे। सो दे हैव अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, और उसके पीछे का सबसे बड़ा गैप है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा आपको कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं मिलता। अंकुर भाई, मैं एक छोटा सवाल करता हूं, अगर आपके सर में दर्द है तो आप क्या करेंगे? Probably Saradon ले लेंगे, कोई दवा खा लेंगे। अगर वो सर दर्द आपका कल भी ठीक नहीं हुआ, परसों भी ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। वो आपके फैमिली डॉक्टर होंगे, बीएमएस, एमबीबीएस, जो भी डिग्री जिनके भी पास आप जाते हैं। अगर 7-8 दिन भी सर दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? डेफिनेटली किसी अल्ट्रा हाई स्पेशलिस्ट को ढूंढ के हॉस्पिटल जाएंगे। यस, आप जाएंगे किसी न्यूरो ब्रेन के एक्सपर्ट के पास। करेक्ट। 90%। या जाएंगे किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आई के एक्सपर्ट के पास। इसका मतलब प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन सुपर स्पेशलिस्ट के पास ही। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट। अब जब रियल एस्टेट में लोगों को प्रॉब्लम आती है, एनीवेयर दे सर्च अक्रॉस द ग्लोब, 1200 ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो डले हुए हैं कि दे फाइंड अस एंड देन दे कम टू अस, एंड देन वी आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम एंड देन वी स्टार्ट गिविंग देम द सॉल्यूशन, जिसके वजह से हमने बहुत सारी टर्न अराउंड स्टोरीज देखी। क्योंकि 20 साल सुबह से शाम तक एक ही काम किया है, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट। वाह, अमेजिंग। सो अगर मैं बात करूं कैश फ्लो की, सो कैश फ्लो क्या रोल प्ले करता है आपके हिसाब से इन दीज लार्ज स्केल बिजनेसेस? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, मैं मानता हूं आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपके पास शेयर से पैसा आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका प्रोडक्ट। अगर वो सही समय पे बन रहा है, वो सही समय पे बिक रहा है, और आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट मार्केट में कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, तो ही वो कंपनी चलेगी। शेयर भले 400 रुपए से 2000 रुपए हो जाए, पर अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा, करेक्ट, वो क्वालिटी डिलीवर नहीं होगी जो आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएंगे। कभी कभी ओवर एक्सपांशन भी कंपनी को किल कर देता है, अगर प्लानिंग के बिना और सिस्टम के बिना होता। That's what we have observed in so many practical on-ground stories we have dealt with. And cash flow का कहीं ना कहीं CRM के साथ हम सुनते हैं बहुत बड़ा एक डीप रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या होता है ना कि सेल्स की टीम का एक पर्टिकुलर रोल है। करेक्ट। मार्केटिंग ने अवेयरनेस क्रिएट करके लीड जनरेट कर दी, सेल्स ने बुकिंग करके पैसे ला लिए। बट सेल्स ने पैसे कौन से लाए? टोकन अमाउंट या डाउन पेमेंट। अब यहां से लेकर 90% बचा हुआ पेमेंट सीआरएम डिपार्टमेंट लाता है।
अब वो रिकवरी अगर दमदार नहीं है, ट्रेंड लोग नहीं है, वो लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग का स्किल नहीं है, तो फिर आप समय पे रिकवरी कैसे करोगे? ठीक है, आप ऑटोमेशन लगा दीजिए, सॉफ्टवेयर का यूज कर लीजिए, पर भाई इंसान को तो इंसानी टच भी चाहिए ना पैसा देने के लिए। करेक्ट करेक्ट भाई, वो किस व्यू पॉइंट से ऑपरेट कर रहा है, वो उसको थोड़ी ना कोई चैट जीपीटी है, उसको कोई किताब या उसको कोई लेट्स से उसको ओनर सिखा सकते हैं। फॉर दैट डेफिनेटली एज यू सेड दे नीड समवन सुपर स्पेशलिस्ट who has personally dealt with thousands of CRM professionals, राइट। तो वो अगर सीआरएम की टीम ही नहीं है, रिलेशनशिप मैनेजर से नहीं है, कस्टमर रिलेशनशिप का डिवीजन सही सेट नहीं, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। छोटे कंपनियों में तो भैया बेचारा अकेला ही चीफ एवरीथिंग ऑफिसर है। हमारा एक बहुत फेमस वीडियो है कि अगर आप 200 रुपए का लाइट भी खुद ही खरीदने जाते हो, तो जो छोटा बिल्डर डेवलपर है वो तो भाई सीईओ है, अपनी दुनिया का सीईओ है, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर है। लेकिन भाई बड़ा जो बिल्डर डेवलपर है उसका इशू यही जाता है कि डिपार्टमेंट में लोगों को हायर करने से सिर्फ कंपनी नहीं बढ़ेगी। क्या वो लोग कैपेबल है? क्या उनके पास स्किल है? नहीं है तो क्या आपने सिखाने का कोई बंदोबस्त किया है? अगर लोग ट्रेंड ही नहीं होंगे तो लोग रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्या लोगों को क्लैरिटी है कि सुबह 10 से 6, 6:30, 7 बजे तक उनको करना क्या है और मंथ के एंड में रिजल्ट क्या देना है? ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में भी लोगों को क्लियर नहीं होता। बहुत सारे जगह पे कुछ बहुत अच्छी कंपनियां जो एक्सेप्शनल काम कर रही है, बट उसके अलावा 90% बड़ी कंपनियों में भी ये चैलेंजेस आते ही है। Amol bhai, coaching often seems to be an expense even for large scale organizations. Have you faced that statement ever? When we started 10-15 years before, बिल्कुल ऐसा रेजिस्टेंस लोगों में आता था। अब उनको पता चल गया ये एक्सपेंस नहीं, ये नेसेसिटी है। इन्वेस्टमेंट है राधा, क्या आप ये बोलेंगे? यस, इन्वेस्टमेंट और नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि रियल स्टेट में बने बनाए लोग नहीं मिलते। आपको लोग क्रिएट करना पड़ता है, आपको टीम बनानी पड़ती है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो जब टीम बनाओगे नहीं तो वैसा रिजल्ट मिलेगा नहीं। और क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, आपके लिए बड़ा इजी एक आईटी कंपनी डालना है, आप कंप्यूटर इंजीनियर्स को हायर कर लो। आपको एक बड़ा हॉस्पिटल डालना है, एमबीबीएस एमडी लोगों को हायर कर लीजिए। आपको एक बहुत बड़ी फाइनेंस लॉ फर्म डालनी है, आप एडवोकेट्स को हायर कर लो, आप सीएस को हायर कर लो, आप एमकॉम्स को हायर कर लो, आप एमबीए फाइनेंस को हायर कर लो। भाई रियल एस्टेट कंपनी बड़ी डालनी है, किसको कहां से लाओगे बताओ? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वाओ, दैट्स सच अ बिग स्टेटमेंट। यस। तो अब आप क्या करते हो? आप तुक्का लगाते हो इस इंडस्ट्री में। ऑटोमोबाइल वाला अच्छा कर लेगा, इंश्योरेंस वाला कर लेगा, एफएमसीजी वाला कर लेगा, और जो थोड़े थाड़े है भी वो ऐसे लोगों से सीखते हैं जिन्होंने कभी बिजनेस ही ना किया हो रियल एस्टेट का। मैं देश में हमेशा एक ही चीज कहता हूं, भैया मैं सुबह 10 से 6:30 हफ्ते में 5 दिन अपना बिजनेस संभालता हूं। मेरी फ्लैट स्कीम्स कैसी चल रही है, मेरे लेआउट्स कैसे चल रहे हैं, मेरे पार्टनरशिप में रिजॉर्ट्स कैसे चल रहे हैं, और वो एक्सपीरियंस या जो 2500 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया लोगों ने, जिनकी कंपनी 500 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ तक की, बड़े से लेकर छोटे से छोटे शहर तक, वो एक्सपीरियंस जब लोगों तक पहुंचता है तो उन्हें समझ में आता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं अकेला इतना काम करके एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, पर 2500 साल का एक्सपीरियंस जो लोगों ने मुझसे शेयर किया, जिनके पास 1 मिनट का समय नहीं था कैमरे के सामने आने का, जिसके लिए 5 साल लगे, 10 टीम मेंबर्स ने 500 लोगों को स्क्रूटिनाइज किया, तब जाके 50 को फाइनल किया। तब जाकर वो इंटरव्यूज हो पाए, जो बुक में डॉक्यूमेंट हुए, तो बुक जाके नेशनल बेस्टसेलर बनी, रियल एस्टेट गेम चेंजर्स। ये सब एफर्ट्स मुझे लगता है लोगों तक पहुंचते हैं, इसीलिए वो टच फील करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्किल और विल, डेफिनेटली ये दो अपने आप में बहुत बड़े गैप्स होते हैं, राइट? हर एक सेगमेंट को अगर उठाएं हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल्स, वहां पर क्या स्किल गैप है जिसके ऊपर आप कोच करते हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो हमारा एक बहुत बड़ा रिसर्च कहता है कि 8 डिपार्टमेंट के बिना कोई भी रियल एस्टेट कंपनी बड़ी बन नहीं सकती। इवन लार्ज स्केल हो, चाहे मिड स्केल हो, चाहे स्मॉल स्केल। जब आप छोटे लेवल पे शुरू करते हो तो आपको 2 से 3 डिपार्टमेंट पे फोकस करना पड़ता है। जब आप मिड सेगमेंट की कंपनी बनते हो 5 से 6 डिपार्टमेंट, और जब बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हो तो 7-8 डिपार्टमेंट अच्छी चलनी चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है R&D रिसर्च। सही रिसर्च के बिना कोई कंपनी सफल प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती। जब रिसर्च सही हो जाती है तो उससे भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो किसी और बिजनेस में इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता, वो लीगल। 20 साल बाद भी आपके प्रोजेक्ट पे बुलडोजर चल जाएगा। मैं ऐसे कई क्लाइंट्स को जानता हूं जिन्होंने 300-300 एकड़ के लेआउट बेच दिए, और अलग अलग सरकार बदलने के बाद, उनके नियम आने के बाद लेआउट तक में, प्लॉटिंग डेवलपमेंट में भी बुलडोजर चल गए। क्योंकि उनको लगा हम तो पावरफुल है, कर लेंगे, देख लेंगे, संभाल लेंगे। नहीं होता है ऐसा।
सो लीगैलिटीज के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाओगे, सही काम करोगे तो चलेगा। तीसरा है भैया फाइनेंस। एक अकाउंटेंट रखने से रियल एस्टेट कंपनी नहीं चलती। क्या हमने कई लोगों को देखा है 100 करोड़ का काम करे, 3 एम्प्लॉय, एक पानी पिलाने वाला, एक रिसेप्शनिस्ट और एक अकाउंटेंट। भैया कंपनी कैसे चलेगी? ट्रेन किसको करेंगे? वो कहते हैं सर सिस्टम ट्रेनिंग दे दो मुझे। किसको दो सिस्टम? लोग ही नहीं है तुम्हारे पास, पहले लोग तो लाओ, उसके लिए पहले तुमको पावरफुल बनना पड़ेगा। ब्यूटीफुल। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती है, आपको अकाउंटेंट के बाद सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंस हेड, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, बहुत सारी लेवल्स होती है। कंपनी जब ग्रो करेगी उस लेवल पे क्या क्या रिक्रूटमेंट करना है वो तक फिक्स होता है। करेक्ट करेक्ट। ये सब सही भी चल गया तो चौथा डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। आप दिल्ली से आए हो, दिल्ली के नंबर 1 मिठाई बनाओगे ना, आपका पड़ोसी भी आपकी मिठाई नहीं खरीदेगा जब तक उसको पता ना हो आप मिठाई बनाते हो। करेक्ट। तो लोगों तक जब तक आपके ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं जाएगा तो लोग आप तक कभी नहीं आएंगे। करेक्ट। तो मार्केटिंग आना बहुत जरूरी है। अभी चारों डिपार्टमेंट सही भी हो पर आपके पास तगड़े बंदे नहीं है जिनके पास वो दम नहीं है लोगों की आंखों में आंखें डाल के समझा के चेक निकालने का, तो भी अटक गई कहानी। सेल्स तो चाहिए चाहिए। अब ये पांचों डिपार्टमेंट ठीक हो भी गए तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे मैक्सिमम कंपनियां फेल हो रही भारत में वो है ऑपरेशन। अच्छा। कई प्रकार के ऑपरेशन है, प्री प्रोजेक्ट, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट। ओके ओके। प्री प्रोजेक्ट में क्या क्या करे, ड्यूरिंग प्रोजेक्ट क्या क्या होना चाहिए, आफ्टर बेचने के क्या क्या होना चाहिए, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होगी तो बड़ी कंपनी कैसे बनेगी। फिर आता है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, मेरी बुक में भी ये सब मेंशन है, 7 हॉर्सेस ऑफ रियल एस्टेट, लेकिन मैं आपको 8 एडवांस हॉर्स भी यहाँ पर सब समझा रहा हूँ। क्या बात, आप समझिए ये बात को। 7वां डिपार्टमेंट है HR D। मैंने D क्यों लगाया? सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से कुछ नहीं होता, उनका डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सिर्फ लोगों को लाने से कुछ नहीं होगा। लोगों को जब तक डेवलप नहीं करोगे, ये सिखाओगे नहीं, सिस्टम में लाओगे नहीं, तो रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? करेक्ट। सो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये सब काम करेगा कौन? लोग लगेंगे। प्रॉब्लम है भारत का, लोगों को लोग लगाने ही नहीं है, लोग लेने ही नहीं है। वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 एम्प्लॉय से काम हो जाए और 500 करोड़ का प्रोजेक्ट बिक जाए, बस खत्म हो गई कहानी। मेरा प्रॉफिट इतना आना चाहिए। जबकि बॉस, मेरी रिसर्च कहती है हर बड़ा बिल्डर तब बना है जब उसने लोगों को सही प्रोडक्ट दिया, अपना प्रॉफिट छोड़कर पहले प्रोडक्ट पे फोकस किया। 3 प्रोडक्ट तो ढंग के दो, लोग तुमको जानेंगे, पहचानेंगे, तुम्हारा नाम बनेगा। तुमको प्रोडक्ट अच्छा देने में इंटरेस्ट नहीं, इतना % प्रॉफिट मिलेगा तो ही मैं सक्सेसफुल बिल्डर हूं, नहीं तो मैं बिल्डर नहीं हूं। करेक्ट। और लास्ट आता है मैनेजमेंट और लीडरशिप। भारत में आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनके बेटे भी फेल हो गए। एक बेटा बहुत सफल हो गया, दूसरा बेटा फेल हो जाता है कभी कभी। क्यों भाई? एक ही स्कूल, एक ही माँ बाप, एक ही एजुकेशन, फिर ऐसा क्यों होता है? एक ही इन्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप की स्किल हर व्यक्ति के अंदर अलग होती है। जब ये 8-9 डिपार्टमेंट्स अलग अलग और इनके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, काम होगा तो कंपनी बड़ी बनेगी। मेरा ऐसा मानना है भारत की हर कंपनी 0 से 50,000 करोड़ तक भी जा सकती है अगर सिस्टम्स पे चले तो। पर वो सिस्टम्स पे चलते नहीं है। आप कितनी बड़ी कंपनी हो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपके कितने डिपार्टमेंट एक्टिव होने चाहिए। ये लिटमस टेस्ट है, जैसे हम लोग बचपन में केमिस्ट्री के लैब में किया करते थे। करेक्ट। तो ठीक उसी तरह से ये सब भी काम करते हैं। वाह। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सिंस आपने बोला कि लेगेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सो माय क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हाट रियली differentiates a large scale developer to a mid scale developer? To be very honest with you, और आप सबको भी मैं बताना चाहता हूँ, एक लार्ज स्केल और मिड स्केल डेवलपर में बस यही फर्क होता है। सबसे पहला तो टीम साइज का, दूसरा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स का, तीसरा उससे भी इंपॉर्टेंट उनके माइंडसेट और एक्शन टेकिंग एबिलिटीज का। ब्यूटीफुल। अब ये जो 8 डिपार्टमेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया जो एक लार्ज कंपनी में होते हैं, कभी कभी वहां भी नहीं होते या मिसिंग होते हैं। लेकिन मिड सेगमेंट में इसमें 3-4 डिपार्टमेंट ही वर्किंग होते हैं, बाकी डिपार्टमेंट उसे बहुत जल्दी सेट करने पड़ते हैं। अगर वो मिड से लार्ज में मूव करना चाहता है तो उसे उन डिपार्टमेंट के लिए टीम सेट करनी पड़ेगी, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, रिव्यू मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, और सबसे पहले तो अपनी एक्शन टेकिंग एबिलिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बड़ा करना हो। जब वैसे बंदों को लाओगे तो वो बंदे वैसा रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो लोकल प्लेयर थे, जो एक सिटी में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी किसी अच्छे 4 बंदों को हायर करके अपनी कंपनी को 2x या 3x या 5x भी ग्रो किया विद प्रॉपर सिस्टम, ट्रेनिंग, कोचिंग की मदद से और सिस्टम्स बनाकर। कई बार ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आते हैं जब बंदा 15 साल से काम कर रहा है, 16 प्रोजेक्ट कर चुका है, 23 प्रोजेक्ट कर चुका है, बट एक्सपांड नहीं हो रहा है, 5 साल से स्टक हो गया है, उतना ही टर्नओवर होता है। अब वो कहाँ फंस रहा है उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्या है, वो उसके अंदर फंसा हुआ है, वो बाहर से नहीं देख पा रहा इशू क्या है। बट एक कोच के मद्देनजर जब आप इतने लोगों के साथ काम कर चुके हो तो आप इजीली पहचान लेते हो कि ये चीज है जहां सब कुछ अटका हुआ है। आप डिटैच्ड होते हो, कहीं आप डिटैच्ड होते हो।
सो दैट इज द फैक्टर अंकुर भाई, आई फील जिससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक मिड स्केल डेवलपर, आपको क्या लगता है ऐसा क्या करंटली, बिकॉज यू हैव इंटरव्यूड सो मेनी डेवलपर्स, सो व्हाट आर द 3 टॉप चैलेंजेस अ मिड स्केल डेवलपर फेसेस? देखो, मिड स्केल डेवलपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, चाहे टियर 1, टियर 2, टियर 3 हो, 2, 4, 5 प्रोजेक्ट करने के बाद वो जब जंप करता है, जब वो 8 फ्लैट, 10 फ्लैट, 20 फ्लैट, 50 फ्लैट बनाता है, वहां तक तो सब सही चल रहा होता है। 7 फ्लोर, 6 फ्लोर, 4 फ्लोर, या लेआउट करता है 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ के। पर जैसे ही वो अपनी कैपेसिटी से 4 गुना बड़े प्रोजेक्ट में चला जाता है, मान लो 400 फ्लैट की टाउनशिप, 50 एकड़ का कोई लेआउट, अब इसकी टीम और इसके ऑपरेशंस उस लेवल के नहीं होते, पर प्रोजेक्ट उस लेवल का हो जाता है। तो वो मिसअलाइनमेंट हो गया, वो मिसअलाइनमेंट हो गया। अब इसे लगता है कि जिसने 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई है वही 15 फ्लोर की या 50 फ्लोर की बिल्डिंग भी बनवा लेगा। करेक्ट, समझ रहे हो? वही कॉन्ट्रैक्टर बना लेगा, वही कॉन्ट्रैक्टर बना लेगा, वही टीम कर लेगी। इसे लगता है कि जिसने अकाउंट संभाला हो 10 क्लाइंट का, वही 400 क्लाइंट को भी संभाल लेगा। तो मींस असम्पशन से काम चल रहा है। उसकी तैयारियां काहे की हो रही है? सिर्फ लैंड खरीदने की, प्रोजेक्ट बनाने की। प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, कैसे रिकवरी होगी, कैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रॉपर चलेगा, कैसे क्वालिटी और एनहांस होगी, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं होता, जिससे कई 90% लोग फेल हो जाते हैं। और इधर इन्वेस्टर को भी बेचारे को नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता, उसको लगता है 6 प्रोजेक्ट तो बना है, 7वां भी बना लेगा। बट 6 प्रोजेक्ट की स्केल और 7वें प्रोजेक्ट की स्केल में कितना बड़ा फर्क है, ये इन्वेस्टर नहीं समझ पाता। ब्यूटीफुल, वेरी डीप, वेरी डीप। That is the problem, I think. So what is that one thing which you would advise to a mid-scale developer when they are transitioning from small projects to a large mid-scale kind of project? देखिए, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कहना यही आता है, रिसर्च। Okay. सही जगह, सही प्रोडक्ट और सही टीम जो उसे कर पाए। इतना बेसिक नॉलेज या तो सीखना पड़ेगा बहुत जल्दी, या तो ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में होता ही है, भाई वो मुझे अपने सीक्रेट्स क्यों बताए? यस। तो कोई किसी को ये बताना नहीं चाहता कि मैंने 400 फ्लैट का प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट कैसे किया। वही अवेयरनेस के लिए हमने देश में ये मुहिम शुरू किया आज से 10-15 साल पहले, कि लोगों तक सही नॉलेज पहुंचे। करेक्ट। तो जब आप तैयार ही नहीं हो, मेरा एक सिंपल सवाल है, आज का जो जेनजी है बहुत ज्यादा गेम्स खेलता है, मान लो एक गेम की कैपेसिटी हो कि वो सबसे लेटेस्ट i7 में ही चलेगा, तो क्या वो पेंटियम डी या सेलेरॉन पे भी चल पाएगा? नहीं। इसका मतलब आपको एक हाई रेंज का ग्राफिक्स वाला गेम खेलने के लिए उतने रिक्वायर्ड कंप्यूटर की जरूरत है। चाहिए। ठीक उसी तरह उस लेवल का प्रोडक्ट बनाने के लिए, वैसे टाउनशिप डिलीवर करने के लिए आपको उस लेवल के टीम की, नॉलेज की, लीडरशिप स्किल्स की और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। ये मिड सेगमेंट जिस दिन समझ जाएगा तो वो सही सीखकर सही टीम बिल्ड कर पाएगा, सही लोगों को ला पाएगा। हमारी रिसर्च कहती है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो बहुत अच्छा काम कभी कभी कर लेते हैं रियल एस्टेट में, बट लोग उन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो उनकी स्किल्स को इस इंडस्ट्री से मैच नहीं कर पाते। तो जब इतने सारे लोगों के साथ काम किया तो हमें समझ में आने लगा कि ये बंदा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि अब रियल एस्टेट पे नहीं था पर कुछ और रिलेटेड डिपार्टमेंट में तो लोग पढ़ाई कर रहे थे। करेक्ट। तो भाई अगर एक मिड स्केल डेवलपर की बात करें तो हाउ डज अ विजन ऑफ अ मिड स्केल डेवलपर लुक्स लाइक? देखिए, मिड स्केल डेवलपर को मैंने कई बार जो देखा है वो यही होता है। दिखता कैसे है? मुझे वो समझना है। ये वो बंदा होता है जो या तो पहले किसी बड़े बिल्डर के पास था, वो 10-15 साल सीखा, फिर उसने 2-4 प्रोजेक्ट बनाया, उसका कॉन्फिडेंस बन गया, तो अब धीरे धीरे वो एक्सपांड कर रहा है, पर उसके बाद 2-4 ही बंदे होते हैं, उसका हर काम के लिए 2 ही फोन लगते हैं। हाँ, विजय किधर है, अशोक किधर है, राम किधर है, खत्म हो गई कहानी। उसके पास कोई टीम नहीं होती क्योंकि उसने पुराने बिल्डर को 20 साल पहले ऐसे ही करते देखा है। करेक्ट। दूसरा, कभी कभी कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बन जाता है जिसको लगता है मैंने 10 बिल्डर की टाउनशिप बनाई है, थोड़ा पैसा जमा करके मैं शुरू कर देता हूँ, तो वो 2-4-5 प्रोजेक्ट तो कर लेता है, बट अब जब सच में एक्सपेंशन का समय आता है तो अटक जाता है। कोई हार्डवेयर वाला भारत में बिल्डर बन जाता है कि भाई कई लोगों को माल तो सप्लाई कर ही रहा था तो अपना माल अपने प्रोजेक्ट में यूज हो जाए, तो मैं टाइल का सप्लायर हूँ, मैं सीमेंट का सप्लायर हूँ, रेती का सप्लायर हूँ, गिट्टी का सप्लायर हूँ और प्लम्बिंग मटेरियल भी मेरे पास है, मैं ही बिल्डर बन जाता हूँ। अरे भाई, मटेरियल होना और बिल्डर का एक्यूमेंट होना में फर्क है, बहुत फर्क है। तो ये लोग 3-4-5 प्रोजेक्ट तक तो सही चला लेते हैं, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। कभी कभी तो कैश फ्लो को मैनेज ही नहीं कर पाते और पर्सनल एक्सपेंसेस इतने कर लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट से आए हुए 200 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए,
प्रोजेक्ट बनाने पे फोकस नहीं रहा, खुद का ही घर बना लिया 10 करोड़ रुपए का, गाड़ी खरीद ली खुद के लिए 5 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की, शादी कर दी 5 करोड़ रुपए में, और वो प्रोजेक्ट ही डिलीवर नहीं हो रहा जिसमें लोग पैसा लगा कर बैठे। करेक्ट। और आपने 3 साल का समय बता दिया प्रोजेक्ट डिलीवरी का, पर वो डिलीवर नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका कुछ भी मैनेजमेंट सही चल नहीं रहा। ये देश में बहुत बड़े इश्यूज है इवन विद द मिड सेगमेंट एंड टॉप प्लेयर्स एज वेल। तो अमोल भाई, रिसर्च के अंदर मिड स्केल डेवलपर गलती करता है क्या? बहुत बड़ी गलती करता है। उसे लगता है जो प्रोडक्ट उसके मन में आए वो बना दो। ओह रियली? अब अगर मार्केट की डिमांड है 1 BHK बहुत बिक रहा है, या 2 BHK बिक रहा है, या 3 BHK, मान लो 2 BHK बिक रहा है 1000 से 1100 फुट का, कोई ने उसको दिमाग दिया और उसने बना दिया 1200, 1300 या 1500 फुट का 2 BHK बड़ा बनाऊंगा, या 3 BHK की डिमांड हो 1500, 1700 स्क्वायर फीट की, मार्केट की रिसर्च के हिसाब से इसने बना दिया 1900, 2000। अब पूरा मार्केट का प्रोडक्ट बिक रहा है पर इसका नहीं बिक रहा, क्योंकि इसको जो लगा वो इसने कर दिया। आज के जमाने में लोग समझदार हो गए, उनको कारपेट समझता है, बिल्डअप समझता है, सुपर बिल्डअप समझता है, लोडिंग की भी लिमिट समझती है। आप सही प्रोडक्ट मार्केट के रिक्वायरमेंट को समझकर जब बनाते हो तो वो जल्दी बिकता है। अंकुर भाई देखो, एक रोड पे मान लो 10 टाउनशिप चल रही है, 2 टाउनशिप जल्दी बिक जाती, अगली 4 टाउनशिप 4-5 साल में तो बिकी जाती, पर बची कुछ ही ना कभी कभी 7-8 साल में भी पूरी नहीं बिकती। काम रुक जाता है अलग अलग शहरों। यही सब लोग प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। तो मिड सेगमेंट में होता क्या है कि जब तक आप रियल ग्राउंड पे चीजों को समझकर सही रिसर्च करके, तो सीखना पड़ेगा, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, उस लेवल की कोचिंग लेनी पड़ेगी कि ऑन ग्राउंड लेवल पे रिसर्च कैसे करें, क्योंकि ये बड़ी एजेंसीज को हायर नहीं कर पाते। बड़े प्लेयर्स तो बस स्मार्ट गेम चलते हैं, दे हैव अ रिसर्च रिपोर्ट, राइट, दे हैव अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट विद देम, पर छोटे प्लेयर्स के पास तो कुछ रहता नहीं है। और फिर जब पैसा अटक, मैंने कई बड़े बड़े धन्ना सेठ लोगों को देखा इस बिजनेस में, दूसरों को देख के उतरते हुए कि इसने तो गाड़ी खरीद ली, इसने तो कम समय में ये खरीद लिया, अब वो प्रोडक्ट बना देते। भैया कितने फ्लैट है? ये 14 फ्लैट है, एक फ्लैट कितने का? 1.5 करोड़ रुपए का, टोटल इन्वेंटरी कितने की होगी? 21 करोड़ रुपए, कितने बिके? 3, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे तो 18 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी अटकी हुई है। अच्छा, वो रेट भी छोड़ने को रेडी नहीं, कि उसको घर में प्रॉब्लम नहीं है पैसे का। एक तो प्रोडक्ट मार्केट से मैच नहीं हो रहा, दूसरा तुम रेट भी नहीं छोड़ना चाहते। तो एक समय ऐसा आ जाता है लगा लगा के भी जेब से कितना पैसा लगाओगे। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी बताऊं, कुछ दिन पहले हमारे पास सेम ऐसा केस आया हुआ था। तो न जाने ये प्रॉब्लम कर करके लोगों को एक आदत सी हो गई है, ये गलतियां कर करके लोगों को आदत सी हो गई है। अब हमें आगे जाकर हमारा मिशन ये है कि लोगों तक सही नॉलेज पहुंचाए कि भाई कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर कहता है कि जिस एरिया में जैसा प्रोडक्ट लोग खरीदना चाहते हैं पहले उसे पता कर, वैसा प्रोडक्ट डिजाइन करो, उस साइज का, उस प्राइस का, उतनी एम्यूनिटीज का। ओवर एम्यूनिटीज भी बर्बाद हो सकती है, कम भी बर्बाद हो सकती है। प्रोजेक्ट कैसा बैलेंस डिजाइन हो ये समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती। दैट मीन्स आप ये कह रहे हो कस्टमर को डीपली अंडरस्टैंड ना करने का आउटकम होता है कि एक बिल्डर मिसफिट प्रोडक्ट क्रिएट कर देता है। 100% आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझ ही नहीं पाते, उसी वजह से मिसफिट प्रोडक्ट पैदा होता है, और फिर मिसफिट प्रोडक्ट दिखता नहीं है, और बिल्डर अपनी टीम को गुस्सा होता रहता है, चैनल पार्टनर पे गुस्सा होता रहता है, तुम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। अच्छा, चैनल पार्टनर भी इतने एजुकेटेड थोड़ी होते कि वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट मैच भी हो रहा है कि नहीं समझ पाए, तो वो ये देख के कि कमीशन ज्यादा मिल रहा है एंटर हो जाते हैं। फिर 6 महीने एफर्ट लगाते हैं, लीड जनरेट करते हैं, विजिट्स कराते हैं, बुकिंग नहीं होती है, फिर एंड में रियलाइज होता है यार ये प्रोडक्ट ही नहीं बिकता। That's a big gap. I have 100+ केस स्टडीज लाइक दिस जब हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किए। सो लेवल 1 से चीजों को ठीक करेंगे तो मिड सेगमेंट भी लार्ज स्केल का प्लेयर आगे जाकर बन सकता है। एंड सिंस हम चैनल पार्टनर की बात कर रहे हैं, आई हैव हर्ड लॉट मेनी टाइम्स चैनल पार्टनर्स सेइंग मी कि एक मिड स्केल डेवलपर के साथ काम करने में उनको बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं, करेक्ट? सो व्हाट आर द 3 टॉप प्रॉब्लम्स a channel partner faces because of this product misfitting? देखिए, सबसे पहला और मेजर प्रॉब्लम होता है कि आप बहुत मार्केटिंग स्पेंड कर देते हो, एफर्ट लगा देते हो, पर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आता। ओके। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है, अगर आपने मेहनत करके कुछ बेच भी दिया तो उसके एक्सपेक्टेशन से आपका सेल मैच नहीं होता तो कमीशन जल्दी आपको नहीं देता। करेक्ट। क्योंकि उसने सोच रखा है या आपने प्रॉमिस कर रखा है मैं साल भर में इतने सेल निकाल दूंगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट मिसफिट है, वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो आपको आपका पैसा नहीं मिलता है। तीसरा, ये सब करने में आपको फील होता है कि यार ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, तो चैनल पार्टनर इस फील्ड को छोड़ देते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट। या तो कुछ बड़े प्लेयर का काम करने लगते हैं, या तो खुद डेवलपर बन जाते हैं इस परेशानी में आके, छोटे मोटे से। चलो भाई, 4 दोस्तों ने 50-50 लाख रुपए लगाए, छोटे प्लेयर खुद ही बन गए।
करेक्ट। सो इंडस्ट्री बदनाम होती है ये सब कारण की वजह से। इसका बहुत सारा रिपल इफेक्ट होता है जो आने वाले समय में इंडस्ट्री में काम करना है लोगों पे पड़ता है। ब्यूटीफुल। सो अगर मैं ओवरऑल सेल्स की बात करूं तो एक मिड स्केल डेवलपर क्या क्या सेल्स के चैलेंजेस को गो थ्रू करता है? देखिए सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होता है कि इन्वेंटरी रेडी पोजीशन तक पहुंच जाती है कई शहरों में भारत के, पर बिकती नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका 50% जब कंस्ट्रक्शन हो तब तक आपकी इन्वेंटरी खत्म हो जाए तो आप एक सक्सेसफुल बिल्डर है। अच्छा, मतलब 50% एक लिटमस टेस्ट है, वो उतना तो पास होना ही चाहिए। एटलीस्ट अब तक आपकी 80 to 90% इन्वेंटरी खत्म हो जानी चाहिए जब तक आपका 50% प्रोजेक्ट रेडी है, तो आप सही समय पे डिलीवर कर पाएंगे। वरना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो कैश फ्लो ही मैनेज नहीं हो पाएगा। अब वो करे कैसे? वो एक सिस्टम है, वो प्रोसेस है। जितना आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, स्किल वाइज सीखेंगे, सही सिस्टम्स बनाएंगे, ये सब होगा। पर ये लोग करते नहीं है। दूसरा, मिड स्केल डेवलपर्स को बहुत सारी सिटीज में, टियर 1 में तो उतना इशू नहीं है, टियर 2 टियर 3 में ऐसा लगता है यार ये जो कमीशन ले रहा है चैनल पार्टनर मुझसे, वो उसकी जान का टुकड़ा लेकर जा रहा है। आप इसको समझो। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट कैसे बेचती है? अगर मान लो कोई बड़ी कंपनी इंश्योरेंस में काम करे बहुत बड़े स्केल पे, तो हो सकता है उसका एजेंट महीने का 1 करोड़ रुपए भी कमीशन उठाए, पर उसको बुरा थोड़ी लगता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि तुम्हारे 1 करोड़ कमाने की वजह से मेरे कंपनी में 50 करोड़ रुपए आ रहे हैं। बट ये बिल्डर डेवलपर्स का माइंडसेट भारत में नहीं है। अच्छा, कि तुम इतना महंगा प्रोडक्ट बेचते हो, इसके वजह से हम खुशी खुशी आपको पैसा दें, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बड़े भाई को नहीं होता है तो छोटे भाई को हो जाता है, छोटे को नहीं होता है तो 10% के पार्टनर के पेट में दर्द चालू हो जाता है। इतना पैसा कैसे ले लोगे बेच के? सच्चाई को एक्सेप्ट इस इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। करेक्ट। आज जो बड़े बड़े चैनल पार्टनर से मार्केटिंग फर्म्स फेल हुए, वो इसीलिए हुए कि उन्होंने कमिटमेंट से बेच दिया, लोगों ने इनके कमिटमेंट पे ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब बिल्डर से इनको पैसा नहीं आया तो ये सामने पैसा नहीं दे पाए, तो करोड़ों अरबों रुपए भी अटक जाते हैं। तो पहले तो बिल्डर डेवलपर को माइंडसेट रखना है, छोटे से बड़ा बनना है, मिड सेगमेंट से लार्ज स्केल पे जाना है, तो पहले बांटना सीखना है। पावर ऑफ गिविंग, दोगे नहीं तो आएगा नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल। जब आप देना सीखेंगे, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कोई भी कंपनी उठा के देख लो, 10-20 एम्प्लॉय लाकर जो हजार करोड़ का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो किसके भरोसे बेच रहे हैं? पावर ऑफ लिवरेज को यूज करके, सही चैनल पार्टनर से काम करा के। करेक्ट। तो अगर उस पावर ऑफ लिवरेज को यूज नहीं कर पाओगे तो बड़े बन कैसे पाओगे? So that is the problem what I felt, अंकुर जी। ओके, सो अगर मैं आपसे बात करूं तो सेल्स के अंदर भी डेफिनेटली एक प्री सेल्स है, देन सेल्स प्रेजेंटिंग टीम है, एक क्लोजिंग टीम है। अगर हम और डीप जाएं और आपके अनुभव को और ज्यादा शेयर करें तो आई थिंक इट विल गिव द ऑडियंस मोर इनसाइट्स ऑन दिस। तो प्री सेल्स के अंदर क्या चैलेंजेस हैं जो एक मिड स्केल डेवलपर फेस करता है? पहले तो भैया मिड स्केल डेवलपर को भारत की मैक्सिमम सिटी में प्री सेल पता ही नहीं। रियली? यस। बट ये तो बहुत जरूरी है। आज सिर्फ मेट्रो सिटीज को छोड़कर प्री सेल्स अलग होता है, सेल्स अलग होता है, क्लोजिंग अलग होता है, यार यही तो नहीं पता है लोगों को। ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स को समझिए। अच्छा। दुनिया सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं है। आज का इशू ये है, प्री सेल्स लोगों को पहले तो समझता नहीं है। जैसे तैसे प्री सेल्स में लाते तो उन्हें लगता है किसी टेलीकॉलर को ला दो जो किसी टेलीकॉम कंपनी के लिए कॉल कर रहे हो, तो वो हाँ जी सर 1 फ्लैट के साथ 1 फ्लैट फ्री, ऐसा तो यहाँ चलेगा नहीं। राइट। तो पहले प्री सेल्स क्या होता है, प्री सेल्स की टीम के अंदर स्किल क्या होनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। वो समझाइए। प्री सेल्स या सेल्स या कोई भी, देखिए मैं आपको बहुत सिंपल कर देता हूँ। आपका हर डिपार्टमेंट अलाइन होना चाहिए, चाहे प्री सेल हो, चाहे सेल्स विजिट कराने वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे क्लोजिंग का डिपार्टमेंट हो। अब भारत में लोग प्रोडक्ट खरीदने रियल एस्टेट में 2 ही कारण से निकलते हैं। एक, उसने पास्ट में कोई प्रॉब्लम फेस किया, या भविष्य में उसको कोई गोल को सेटिस्फाई करना है। जब प्री सेल से लेकर क्लोजिंग तक सब लोग अलाइंड होते हैं कि सामने वाले को सही प्रोडक्ट देना है, ना कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचना जिससे अपने को कमीशन मिल जाए पर उसको प्रोडक्ट ना मिले। ये पूरी फिलॉसफी को जब कोई डिटेल में डिकोड करता है तो फिर प्री सेल्स, सेल्स, क्लोजिंग के बहुत सारे तरीके निकल कर आते हैं। पर ये प्रिंसिपल अगर फिक्स हो कि सही व्यक्ति को उसके रिक्वायरमेंट को समझ के सही प्रोडक्ट देना है, तो पूरे डिपार्टमेंट फटाफट टकाटक अलाइन हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। क्योंकि बंदा आया है प्रॉब्लम लेकर। प्रॉब्लम क्या होती है? जहां रह रहा हूं पार्किंग नहीं है, दोस्त ने खरीदा था मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, करेक्ट, माँ बाप को घूमने के लिए जगह नहीं है। मैं ऐसी 5000 प्रॉब्लम बता सकता हूं जो कस्टमर को होती है। करेक्ट, करेक्ट। भविष्य में क्या होता है कि भैया इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल फैमिली के साथ रहने आना है, या बच्चे का एजुकेशन करना है, करेक्ट, या बच्ची की शादी करनी है तो मेरा प्लॉट बिक जाएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा।
Correct. पर दुनिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं उनको सुनने या समझने में। वाओ, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। और टेक्निकल लेवल पे बड़ी बड़ी कंपनियां, डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट, इंग्लिश बोलना आता क्या, पर लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे तुम्हारे लोग, तो करोगे क्या? करेक्ट, करेक्ट। तो अब मैं अगर कनेक्शन की बात करूं तो बहुत बार प्री सेल्स लेवल पर मेरे पास भी कॉल आता है। आई एम श्योर एवरीवन मस्ट हैव फेस्ड दिस once, twice and probably tens of times. फर्स्ट लेवल पर जब प्री सेल्स लेवल पर कॉल आता है तो वो कनेक्शन तो छोड़ो, वो अंडरस्टैंड तो छोड़ो, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन सेलिंग। यस, एंड दैट इज द मेजर मिस्टेक। ओके, रियल एस्टेट में कभी कुछ बिकता नहीं है, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना पड़ता है। वाओ, जब बेचने की कोशिश करोगे कुछ नहीं बिकेगा। वाओ, जब सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो अपने आप बिकेगा, लोग तुमको ढूंढेंगे। बट उनका माइंडसेट तो ये होता है ना कि मैं अगर अंडरस्टैंड करूंगा तो एक तो इतना टाइम लगेगा, और इतना टाइम मेरा कंज्यूमर मुझे क्यों देगा? दुनिया का हर कंज्यूमर टाइम देना पसंद करता है, क्योंकि लोगों को ये पसंद होता है कि लोग उनकी प्रॉब्लम को सुने। यस, तो दैट मींस ये उनका सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। यस, ओके, नाइस। तो कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। करेक्ट। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर जॉब करता है, महीने में 50 डॉक्टर को या 20 डॉक्टर को 5 बार मिलता है, तो 100 बार मिलता है, तो जाके 6वें महीने वो एक बार दवाई लिखता है। करेक्ट। आपको लगता है पहले ही बार में सब कुछ हो जाए? और अगर ऐसी सेल निकल भी गई ना तो टोकन तक रहती है, बाद में एग्रीमेंट और सेल डीड नहीं होती। उसका कोई गारंटी नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया। करेक्ट, करेक्ट। ना उसकी प्रॉब्लम को समझा और ना उसको रियलाइज कराया कि उसकी वो एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम है भी या नहीं, तो वो खुद ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है। आप ये बोलना चाह रहे हैं? यस, और 1000 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ 1-to-1 बैठ के डील करने के बाद मैं ये बोल पा रहा हूँ। वर्ल्ड की किसी किताब में ये पॉइंट ऐसे लिखे नहीं है। हाँ, हमने हमारी किताब रियल एस्टेट गेम चेंजर में बहुत कुछ लिखा है लेकिन ये किताबों में नहीं लिखा है। और बाकी बिजनेस और रियल एस्टेट में 50% से ज्यादा का डिफरेंस है। हर वो प्रिंसिपल जो किसी और बिजनेस में इंप्लीमेंट होता है वो रियल एस्टेट में इंप्लीमेंट नहीं होता। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, यहाँ लोग कोई सब्जी भाजी खरीदने नहीं आ रहे, एक टी शर्ट खरीदने नहीं आ रहे जो वो हर महीने ले सकते हैं, सब्जी भाजी रोज खरीद सकते हैं, एक फोन वो हर 1 साल में 6 महीने में बदल सकते हैं, एक 2 व्हीलर वो हर 2-3 साल में चेंज कर सकते हैं, एक 4 व्हीलर भी वो हर 5 साल में बदल सकते हैं। बट भारत की रिसर्च कहती है कि रियल एस्टेट इंसान पूरी जिंदगी में 1 या 2 ही बार खरीदता है। सो यू नीड दैट काइंड ऑफ टैलेंट टू डील विद दैट काइंड ऑफ पीपल और क्लाइंट। ब्यूटीफुल। एंड पीपल आर अनअवेयर कि ऐसा कुछ है। करेक्ट, करेक्ट। लोग गुस्सा होते हैं टीम पे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा वो जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। They criticize person instead of criticizing the process. Yes, actually गलती ओनर की है। That's why in the RGC CEO कोचिंग हम 3 से 4 महीना पहले CEO के साथ काम करते हैं कि आप उस लेवल के लीडर बनो। Correct. आप उस लेवल का मैनेजमेंट बनाओ कि आपकी टीम आपको देखकर ये ना बोले कि भाई गलती से सब कुछ रेडी मिल गया तो बिल्डर बन गए। टैलेंट है इसलिए बिल्डर बने हो या डेवलपर बने हो, ये पहले टीम बोलेगी तो वो आपके साथ डेडिकेटेड काम करेगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। I think that is something which is very, very important. I'm sure. So, अमोल जी, एक कस्टमर साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक डेवलपर को क्या ऐसी 3 चीजें जो करनी चाहिए? सबसे पहले तो आप किस एरिया या किस सिटी, सबसे पहले किस सिटी में काम कर रहे हो, वहां के बायर का बाइंग रेंज क्या है। फिर आप जिस रोड पे काम कर रहे हो, हर शहर में कुछ नेशनल हाईवेज होते हैं जो शहर को दूसरे बड़े शहर से कनेक्ट करते हैं। करेक्ट। आपने ये तक देखा होगा कि किसी किसी शहर में किसी एक नेशनल हाईवे पे एक बिल्डर के 15 प्रोजेक्ट हो गए, 20 प्रोजेक्ट हो गए, वो भी पूरे शहर में काम नहीं करता। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर होता है हर शहर का, तो वो किसी एक डायरेक्शन में काम करके बड़ा प्लेयर बन जाता है। Yes, absolutely. I mean, मैं अगर याद करूं तो जैसे DLF है, तो DLF just focused on Gurgaon. Yes. They did not get into Noida. They did not get into any other city. They just kept going very deep into one particular that cyber park वाला area. Yes. अब होता क्या है, पहले आप एक फील्ड में एक एरिया में मास्टर बन जाओ। और अगर ये तो बहुत बड़ी कंपनी है DLF, मैं बात कर रहा हूँ छोटे प्लेयर्स की जिन्होंने 5 प्लेयर किए, 5, मैं बात कर रहा हूँ छोटे कंपनीज की जिन्होंने 5 प्रोजेक्ट किए। भाई पहले उस एरिया को समझ लो, वहां के कस्टमर की इंटरेस्ट, नीड, कंसर्न क्या है वो समझ लो। फिर वैसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ना कि जो आपको पसंद आ रहा है।
करेक्ट। एक बहुत फेमस मूवी थी, उसमें कहते थे भाई मेरे मन को भाया, मैं डैश डैश कुत्ता काट के खाया। हाँ करेक्ट। तो आपके मन से नहीं होगा। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, आपके मन से प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। हाँ। सामने वाले का मन क्या है, correct। वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो जब तक बनाओगे नहीं तो प्रोडक्ट मार्केट में हिट नहीं होगा। Okay। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कंज्यूमर को समझना इतना जरूरी है तो क्या आपको लगता है एक डेवलपर को कंज्यूमर को समझने के लिए उसको खुद उससे मिलना चाहिए? 100% सर्वे तभी तो होते हैं, लोगों से मिलना, उनकी रिक्वायरमेंट को जानना, क्वेश्चनियर्स फिल करवाना, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट की पल्स को समझना, ये अगर नहीं पता या ये प्रोसेस करना ही नहीं आता। हम हमारे जितने भी सुपर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, बिल्डर डेवलपर, उनको यही सिखाते हैं, पहले मार्केट को पढ़ो, मार्केट को समझो, फॉर्मेट्स को फॉलो करो, और फिर वो डेटा के भरोसे प्रोडक्ट को डिसाइड करो। देखो मार्केट से रिस्पॉन्स डबल आएगा। ब्यूटीफुल। सेल्स मार्केटिंग तो बहुत दूर की बहुत कहानी आगे है। की बात है। करेक्ट करेक्ट। प्रोडक्ट ही गलत बना दिया है तो होगा क्या? पर एक डेवलपर तो ये सोचता है ना कि मेरा काम थोड़ी ना कस्टमर से जाके मिलना, मैं बिल्डर हूं, मैं थोड़ा मिलूंगा कस्टमर से। बस यही तो प्रॉब्लम है। ओके। प्रॉब्लम है डिटैचमेंट फ्रॉम योर कस्टमर। कितने भी बड़े प्लेयर बन जाओ, मेरा ऐसा मानना है महीने में 1-2 कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना बहुत जरूरी है। ओके। वरना उतनी बड़ी गैप पैदा हो जाती है। आप नहीं कर रहे हो तो मान लीजिए अगर हायरार्की बहुत बड़ी है, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मार्केटिंग डायरेक्टर है, सीएफओ है, अलग अलग सीओओ है, तो एटलीस्ट 1 से 2 लोगों पे ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कस्टमर की पल्स को फील करते रहे। बिकॉज ये पल्स क्या सेम रहती है या चेंज होती रहती है आपके साथ? बिल्कुल चेंज होगी, लेकिन एक प्रोडक्ट में जो बायर है उसको तो समझा जा सकता है कि उसने क्यों यहाँ खरीदा है। यस। तो यहाँ खरीदने वाले और लोग कैसे होंगे ये उसको समझ के पता चलता है। अब मुझे लगता है अमल भाई कि किस कस्टमर ने खरीदा उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्या उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिसने नहीं खरीदा? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उससे ये पता चलता है उसको क्या पसंद नहीं आया। ठीक है। बट अगर आप स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरी बातों को देखेंगे तो मैंने यहाँ ऐसे 1000 चीजें बता दी, क्योंकि ये 1000 चीजें कहीं पेपर पे लिखी नहीं है, ये इतने साल के वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आप तक पहुंच रही है। ट्रू। लेकिन इसी को हम लोग जब हम कोचिंग देते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, बिल्डर डेवलपर्स के, तो फॉर्मेट्स में उनके लिए इजी कर देते हैं। और इन सबके स्ट्रक्चर्ड वे से उसके पूरे फ्रेमवर्क्स बना के आप उनको जब कोच करते हैं तो इट बिकम्स काइंड ऑफ उनकी पूरी हैंड होल्डिंग हो जाती है। दैट्स व्हाई दे बिकम वेरी सक्सेसफुल इन अ शॉर्ट पीरियड। आपके पास 2 ऑप्शन है, 20-25 साल रगड़ के कंपनी बड़ी करो, या एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ 2-4 साल काम करके बड़ी कंपनी जल्दी बना लो। दैट्स मच मोर इजियर एंड स्मार्टर एंड चीपर आई फील। राइट। तो जैसे जब हम छोटे होते हैं भाई, तो एक ऑप्शन तो होता है कि हमारे घर में ट्यूटर आता है, एक ऑप्शन ये होता है कि जब आप कोचिंग में जाते हैं डेफिनेटली तो वहां पर एक ग्रुप होता है 8-10-20 बच्चों का। तो जब आप कोचिंग करते हैं तो मेरा जानने की जिज्ञासा है, तो जब आप कोचिंग करते हैं तो वो एक कम्युनिटी से बहुत कुछ उन डेवलपर्स को सीखने को मिलता होगा। 200%। और आज टचवुड, आज हम एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हर लेवल पे लोगों से जुड़े हैं। एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल एस्टेट एम्प्लॉयज के लिए हम अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेते हैं। उनको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो हमारे साथ सफल बनते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेल्स डायरेक्टर, मार्केटिंग एजेंसीज, बड़े लेवल पे अगर आपको सेल्स डायरेक्टर बनना है तो अलग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारी कंपनी कराती है। अगर आप एक बडिंग बिल्डर या डेवलपर है या बड़े इन्वेस्टर है, आपके पास लैंड बहुत है, पैसा है, पर बिजनेस नहीं समझता, या 2 प्रोजेक्ट बना लिए, तीसरा बनाने की इच्छा है पर ये 2 प्रोजेक्ट ही फेल हो गए तो हिम्मत टूट गई है, तो लोग हमारे पास 1-to-1 सीईओ कोचिंग के लिए आते हैं। यहाँ ग्रुप नहीं होता, यहाँ 1-to-1 हैंड होल्डिंग होती है। अगर आपका 50 करोड़ का टर्नओवर या 100 करोड़ का टर्नओवर और 15 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉइज है तो अलग सिस्टम ट्रेनिंग सिखाते हैं। और अगर आप 500 से 1000 करोड़ का भारत में काम कर रहे हैं और आपके पास 100 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉइज है तो अलग ट्रेनिंग और सिस्टम सिखाते हैं। अब जब इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ग्राउंड लेवल से लेकर एक आईपीओ तक जाने वाली कंपनी तक सबके बारे में पता होता है। हमारा मिशन ये है 2047 तक भारत में 50 से ज्यादा रिलेटेड कंपनीज को आईपीओ तक पहुंचाना। और ये ग्राउंड लेवल का नॉलेज तब काम आता है जब 1-to-1 आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं 30,000 करोड़ की कंपनी के ओनर के साथ या मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, तब आपका ये नॉलेज बड़ा काम आता है क्योंकि उनको पता होता है कि उनके शहर का भी ग्राउंड लेवल का नॉलेज आपके पास है। क्योंकि हर शहर में हमारे मिनिमम 20 से लेकर 50 ट्रेन चैनल पार्टनर्स, एजेंट, ब्रोकर्स, आज देश में इतना बड़ा आरजीसी कम्युनिटी का एक नेटवर्क है।
So, हमें 2 मिनट लगता है किसी का भी पूरा डिटेल निकालने के लिए किसी भी शहर में भारत के 100 से ज्यादा। वाह। So I think that is the game changer thing for this industry. That's what is creating magic. मोहन भाई, जैसे अभी आपने बात करी, एक स्टार्ट जिसको करना है, एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, उसके पास कोई रियल एस्टेट एक्सपीरियंस नहीं है, क्या वो व्यक्ति भी एस्पायर कर सकता है, एक सपना अपने अंदर सजा सकता है कि मैं एक रियल एस्टेट डेवलपर बन सकूं? 200% कर सकता है। हमारे साथ तो कई ब्रोकर्स भी आज बिल्डर बन गए, जिन्होंने शुरू किया था एज एन एजेंट ब्रोकर और आज बिल्डर है। मैं आपको कुछ ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बताता हूँ प्लीज। जैसे मान लीजिए हमारे पास रितेश आए थे अयोध्या से। वो एक डॉग शॉप, पेट शॉप चलाते थे। वहां से उन्होंने पहले ब्रोकर एजेंट की ट्रेनिंग लेके पैसे कमाना सीखा। फिर उन्होंने एक मार्केटिंग फॉर्म लाया, लेआउट्स बेचने लगे, बिल्डर के प्रोजेक्ट बेचने लगे। धीरे धीरे उन्हें और कॉन्फिडेंस आया, वो छोटे मोटे इन्वेस्टर जैसे लैंड खरीदना बेचना फ्लिपिंग करने लगे और आज वो लैंड डेवलपर है अयोध्या में। अब ये प्रोसेस कैसे हुआ? और ऐसे इनन्यूमरेबल स्टोरीज है हमारे पास, एन नंबर ऑफ स्टोरीज है। क्यों है? छोटे लेवल का प्लेयर भारत में 3-4 प्रकार का होता है। एक, उसके अंदर इच्छा शक्ति बहुत है पर पैसे नहीं। सो देयर इज अ सिस्टम टू लर्न थिंग्स, अर्न मनी पहले बिना पैसे लगाए, और फिर 1-1.5 साल बाद उसी पैसे को यूटिलाइज करके छोटे मोटे प्रोजेक्ट में 10-20% की इक्विटी से शुरू कर सकते हो। दूसरा है जिसके पास लैंड बैंक बहुत है। पिताजी ने बहुत मेहनत की, 1000 करोड़ का लैंड बैंक बनाया, ऐसे भी कई लोग हमारे पास है। बट इनको नहीं आता है करना बिजनेस। पिताजी 3 साल से समझा रहे, समझ नहीं आ रहा था। पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने कुछ करना चाहिए। सो दे अप्रोच अस। अब उस केस में क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई नॉलेज कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे अपने आप आ रहे थे घर में, तो सिर्फ पैसे उड़ा रहे थे, पैसे कमाना तो सीखा ही नहीं। सो दे वांट टू लर्न द सिस्टम। कुछ बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनीज या बड़े कंपनियों से भी लोग आते हैं जिनके बच्चे डायरेक्टर तो बन गए, बट दे आर नॉट रनिंग बिजनेस, दे आर जस्ट एंजॉयिंग द मनी फ्रूट ऑफ दैट बिजनेस। पर ये चलता नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा एम्प्लॉय आता है 9:30 बजे और डायरेक्टर पहुंचता है 2 बजे। ये भारत में प्रॉब्लम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो भैया जब आपका एम्प्लॉय लंच करके घर जाने की तैयारी कर रहा है, तब आप ऑफिस आ रहे हो। पैसे को एंजॉय नहीं करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट एक सिस्टम जब तक नहीं होगा कंपनी के अंदर, तो कंपनी बड़ी कैसे बनेगी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सो यू नीड सर्टेन टिप्स, सीक्रेट्स, हैबिट्स। वो सब जब आप करते हो, देन यू बिकम अ सुपर सक्सेसफुल गेम चेंजिंग एंटरप्रेन्योर। तो छोटे लेवल पे लोग यही सब प्रॉब्लम हमारे पास लेकर आते हैं कि भैया 2 प्लॉट है पर काम कैसे करता है नहीं समझता, लीगल का कोई नॉलेज नहीं है, टीम कैसे। अरे एक तो बहुत मजेदार स्टोरी थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे पास आए थे और वो 3 साल से यही सीख रहे थे कि बिल्डिंग का नक्शा कैसे बनाते, खुद ही बना रहे थे। मैंने बोला भैया इसकी जरूरत नहीं है, एक ऑटोकैड का आर्किटेक्ट पकड़ो। बोले सर ये तो कोई बताने वाला ही नहीं ना इस फील्ड में। करेक्ट। तो मेरी गवर्नमेंट से सैलरी तो आ ही रही थी। तो मैंने सोचा धीरे धीरे बिल्डर बन ही जाऊंगा, लैंड पड़ा हुआ है पिताजी के जमाने से। सो पीपल डोंट नो द सिस्टम, प्रोसेस, वेंडर्स कैसे करें, ये पूरा भारत में अभी लोगों को नहीं पता। बहुत बड़ा मतलब एक नॉलेज गैप है, बहुत बड़ा अवेयरनेस का बहुत बड़ा अवेयरनेस का गैप है। कई लोगों को लगता है कि भाई ठीक है पिताजी ने लैंड बनाई थी, दादाजी ने पुरानी लैंड है, अब ठीक है या तो बेच देंगे, हम बिल्डर डेवलपर बन सकते हैं, ये किसी को नहीं पता। तो फिर उनसे जो समझदार है वो खरीद लेते हैं, वो बिल्डर डेवलपर बन जाते हैं। और डेवलपर बनना सो कॉल्ड इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा, आज की डेट में एक एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन है। तो कहीं ना कहीं उसका एक विजन, उतनी बड़ी सोच को अडैप्ट करने में कहीं ना कहीं रिजेक्ट करता है। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए एक एस्पिरेशन तो है डेवलपर बनना, लेकिन ना लोगों के मन में डर भी होता है रियल एस्टेट को लेके। क्योंकि रियल एस्टेट एक अनऑर्गेनाइज्ड फील्ड पहले मानी जाती थी, अभी 50% थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टियर 3 टियर 4 जगह पे सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड वे से रियल एस्टेट चलता है। और इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत बड़ा है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा है। पर ये लोगों के मन में हमने ऐसा देखा है कि अगर आपके पास स्किल है तो पैसा जम जाता है। आपने अगर 3 प्रोजेक्ट सुंदर खड़े कर लिए, समय पे डिलीवरी दे दी, कस्टमर बहुत खुश है, कभी कभी आपका क्लाइंट या आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर बन जाता है। वाह। और आपकी कैपेसिटी टू टेक डिसीजन डबल ट्रिपल हो जाती है। बट वो पहले 2-3 प्रोजेक्ट बना पाना ही लोगों को नहीं समझ में आता या लोग नहीं करते, इसीलिए वो सफल बड़ी कंपनी नहीं बना। So how should a developer decide at a mid-segment level whether they should go into plotted, luxury, affordable? देखिए बहुत सिंपल है। आपको अगर फास्ट फ्लो चाहिए रियल एस्टेट में, तो आप लैंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक 100 एकड़ की जगह में या 50 एकड़ में प्लॉटिंग करते हैं,
तो आपको बेचने से लेकर डेवलपमेंट करने तक 1 साल मुश्किल से लगेगा। बहुत लग्जरी भी करोगे तो 1.25 साल 1.5 साल लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप वो 50 या 100 एकड़ में टाउनशिप डालते हैं तो अलग अलग फेसेस बनाते बनाते 8-10 साल भी लग जाते हैं। तो अगर फंड फ्लो फास्ट चाहिए तो बड़े बड़े प्लेयर भी आप देख रहे होंगे कि पैरेलली आज लेआउटिंग और प्लॉटिंग में आ रहे हैं। अब आपको अपने शहर की डिमांड, अपने शहर में कौन सा प्रोडक्ट लग रहा है, क्या एफोर्डेबल की डिमांड ज्यादा है, मिड सेगमेंट के, लग्जरी क्या, और दूसरा आपका पर्सनल इंटेंट किससे मैच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पसंद है। आप लग्जरी वाले आदमी हो, एफोर्डेबल में अच्छा शायद कर पाओगे। आपको लगता है नहीं एफोर्डेबल लोगों को, ज्यादा लोगों को सर्व करना है, ज्यादा लोगों तक सही रेट में घर पहुंचाना है, तो एफोर्डेबल मिड सेगमेंट ज्यादा अच्छा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको एक ही सेगमेंट में रहना है। कभी कभी आप किसी सेगमेंट में बहुत अच्छा करके क्लाइंट बेस बनाकर फिर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, जो अलग अलग ग्रुप्स कर ही रहे। ब्यूटीफुल। तो इसमें अभी जैसे आपने बोला आपकी इंस्टिंक्ट क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। तो क्या आप पर्पस एक रियल एस्टेट डेवलपर की लाइफ में होना जरूरी है क्या? बहुत ज्यादा जरूरी। डेवलपर नहीं, वैसे तो हर व्यक्ति की जिंदगी में लाइफ में पर्पस होना चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट डेवलपर को ज्यादा जरूरी है। मैं ये क्यों पूछा, आई विल रेफर टू अ केस स्टडी ऑफ आशियाना हाउसिंग। तो उन लोगों ने सीनियर लिविंग को पकड़ा और वो रिलेट करते थे। उनके जो डायरेक्टर्स हैं, जब उनके बारे में मैंने स्टडी किया, पढ़ा, तो मैंने देखा कि सीनियर लिविंग के प्रति उनका एक रुझान था और उन्होंने उसी को ही एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए और आज वो सीनियर लिविंग के अंदर दे आर डूइंग फैंटास्टिक। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, आप उसी सेक्टर में अच्छा कर सकते हैं जो कभी ना कभी आपके लिए प्रॉब्लम था। वाओ, वेरी डीप। अगर आपकी लाइफ में आपने कभी घर नहीं देखा, जैसे मेरी जिंदगी जहां से शुरू हुई, हमारे पूरे एरिया में छोटे छोटे कवेलू के घर हुआ करते थे और धीरे धीरे वो सब घर कंक्रीट के बन गए, पर हमारा घर फिर भी कवेलू का ही था। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA माय फर्स्ट ड्रीम वाज, तो मैंने मेरा एक 4 BHK बना लिया 21-22 की उम्र में, क्योंकि वो चीज मेरे लाइफ में नहीं थी। तो मुझे लगा मैंने वो जल्दी बनानी चाहिए और मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया कि भाई मैं लाइफ में बहुत लोगों के लिए घर बनाऊंगा। तो अपन बिल्डर बन गए, 8-10 लेआउट हो गए, कई अलग अलग लेवल पे अलग अलग पार्टनर्स के साथ में प्रोजेक्ट्स कर रहा हूं, जिसमें न जाने और हमारे ऐसे कई ट्रेन डेवलपर्स है, बिल्डर्स है या स्टूडेंट्स है जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश में क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट व्हेन आई वाज अ प्रोफेसर इन MBA कॉलेज 15 years 20 years डाउन द लाइन, वहां के भी मेरे कुछ बच्चे जो आज अच्छे बिल्डर बन गए। सो आज अगर आपका इंटेंशन क्लियर है कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस की और आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, सही और बड़ा बिल्डर तो वही बनता है जिसका पर्पस क्लियर है। पर्पस क्लियर नहीं है, आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए धंधा कर रहे हो और 2-4-5 प्रोजेक्ट के बाद प्रॉब्लम आने ही आने। आपके वॉल से सीपेज आएगा, आपके दीवालों पे क्रैक्स आएगी। आपने कभी कस्टमर के लिए अच्छा प्रोडक्ट सोचा ही नहीं। आपने रियल एस्टेट को सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन समझा, तो प्रोडक्ट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले 5-7 साल तो गाड़ी चल गई। अब जब क्लाइंट को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो डिक्रीज हो रहा है, तो बड़े बड़े बिल्डर्स की वाट लग जाती है, उनके अगले प्रोडक्ट्स बिकते नहीं है। तो प्रोडक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, हर डिपार्टमेंट की वैल्यू है, लेकिन प्रोडक्ट अपने आप में। एक बिल्डर का मैं अभी भी इंटरव्यू जानता हूं, उन्होंने एक चीज कही थी, भाई मेरी सबसे बड़ी मार्केटिंग मेरा प्रोडक्ट है। करेक्ट। क्योंकि वही लोगों को दिखता है। करेक्ट। अगर वो जिंदा रहेगा तो मेरी कंपनी जिंदा रहेगी, अगर मेरा प्रोडक्ट मर गया तो मेरी कंपनी मर जाएगी। ब्यूटीफुल। सो आप रास्ते से घूम रहे हो और आप शान से बता सकते हो ये प्रोडक्ट मेरा है, ये लाउट मेरा है, तो वो एक कॉन्फिडेंस क्लाइंट में भी आता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मैं आपसे बात करूं, एक रियल एस्टेट डेवलपर जिसने अभी अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी है, करेक्ट, तो उनको किन किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इन दी स्टार्ट फॉर अ न्यू डेवलपर? सबसे पहले तो 3 प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाने पे फोकस करो। थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ तो चलेगा। अगर आपका क्लाइंट खुश है और वो कल आपको प्रमोट करता है, तो इससे बड़ा कोई बिल्डर भारत में नहीं हो सकता। मतलब उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। उससे बड़ी कोई कमाई नहीं। वाह। अगर आपके क्लाइंट को ROI मिल रहा है, चाहे प्लॉट बेच रहे हो चाहे फ्लैट, ROI सबसे बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भले वो खुद के रहने के लिए क्यों ना खरीद रहा हो, बट अगर उसके फ्लैट का प्राइस नहीं बढ़ेगा और कल वो बड़े घर में शिफ्ट होना चाहे, तो आपका फ्लैट बढ़ा नहीं। मान लो किसी ने आपसे 50 लाख का 2 BHK लिया, तो उसकी फैमिली बड़ी होगी, 5 साल उसको 3 BHK में शिफ्ट होना है और आपका 2 BHK 75 में नहीं बिक रहा और उसको 90 का लेने में दिक्कत आ रही, तो भी वो आपको दिल से गालियां देगा। क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट
काम नहीं, रिटर्न नहीं दिया उसको। लोग बोलते हैं भाई एंड यूजर वाला इन्वेस्टमेंट नहीं होता, नहीं, एंड यूजर का भी इन्वेस्टमेंट ही है। कल उसकी फैमिली बड़ी नहीं होगी क्या? वो बंगले में या 3 BHK या 4 BHK में शिफ्ट नहीं होगा क्या? या उसकी एस्पिरेशन लग्जरी की तरफ बढ़ेगी, एस्पिरेशन लग्जरी की तरफ जा सकती है। करेक्ट करेक्ट। प्लॉटिंग में कोई आपके पास लेकर आया है, आपने कमीशन के चक्कर में एज अ चैनल पार्टनर गलती कर दिया, डेवलपर ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जहाँ ROI नहीं मिल रहा है। 5 साल पहले बेचा था आपने 2000 रुपए स्क्वायर फीट और आज भी 2200 में बिक रहा है या 1500 में भी नहीं बिक रहा है, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसको ROI नहीं मिला। ROI नहीं मिलेगा तो आपकी कंपनी का चलना बहुत डिफिकल्ट है। ये सच को जितने जल्दी मार्केट एक्सेप्ट कर लेगा उतना अच्छा है, वरना बहुत लोग आगे बहुत नुकसान या बहुत कंपनी डूबने वाली है। सिंस आपने बहुत सारे ऐसे यंग डायनामिक प्रोफेशनल्स का हाथ पकड़ा होगा जो कि बिल्कुल नॉलेज उनको नहीं थी और वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आना चाहते थे, करेक्ट? तो आपकी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो रियल एस्टेट सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए क्या ऐसी 3 एडवाइसेस होंगी? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैं एक लाइव केस स्टडी के साथ बताता हूँ, रोहतक से हमारे पास मिस्टर मनोज आए थे, या भारत में ऐसे कई शहर से कई लोग हमारे साथ काम कर जिनको रियल एस्टेट का नॉलेज उस समय कुछ भी नहीं था। ऑलरेडी वो अपने लाइफ में 2-3 गलत डिसीजन ले चुके थे कि कुछ सीखने गए लेकिन वहां वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। ही अप्रोच्ड अस, 8.5 एकड़ लैंड खरीद चुके थे, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ था, सेटल्ड भी होने की थी। हमने मनोज जी के साथ काम करना शुरू किया, हैंड होल्डिंग की, CEO कोचिंग दी। उन्होंने बहुत सुंदर प्रोजेक्ट डिजाइन किया सेकंड होम्स का, ऑलमोस्ट 65 to 70 सेकंड होम्स उन्होंने बनाए 8.5 एकड़ में। पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। अभी द्वारका एक्सप्रेसवे में उनका नया ऑफिस है। कहने का मतलब है कि जिसको जीरो नॉलेज है, अगर वो भी एक प्रोसेस को फॉलो करे, एक एक्सपीरियंस कोच मेंटर के साथ काम करे, या हो सकता है कोई बहुत सफल बिल्डर डेवलपर अगर उसके पास समय और वो आपको गाइड करने को रेडी हो तो उससे बात कीजिए, बट कुछ तो सीख कर समझ कर करिए, सही डायरेक्शन में करिए। हमने एक कॉल में उसके 50 लाख रुपए बचाए थे। Nice. कैसे बचाए थे? वो यूपीवीसी विंडो लगा रहा था अपने फार्म हाउस में, अपने सेकंड होम में। वो जा रही थी मान लीजिए 84 लाख रुपए की। मेरे पास आए, मैंने पूछा क्यों लगा रहे हो आप? तो बोले सर यूपीवीसी अच्छा है, क्वालिटी है, ये है। बोला ठीक है। बोला लेकिन ये खुल तो नहीं रही है। बोले खुलेगा तो 2 ट्रैक से 3 ट्रैक हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा, तो 84 लाख की जगह 1.25 करोड़ भी लग सकता है। तो मैंने बोला ये किसने बोला कि यहाँ पे आपको यूपीवीसी का यही वर्जन देना है? आप किसी बहुत जिंदल का 1.5 कोटेड का एल्यूमिनियम में चले जाओ, इससे भी मजबूत हो सकता है और पर्पस भी सॉल्व हो गया कि लोग क्यों आए आपके फार्म हाउस में फ्रेश एयर लेने, ना कि बंद खिड़की को देखने की सुंदर दिख रही। करेक्ट। और आप बजट निकालोगे तो आपको शायद 35 लाख में हो जाएगा जो काम 85 लाख में हो रहा था। ट्रू। लुक भी एक जैसा, स्टडीनेस भी अच्छा। तो हम क्योंकि डीपर लेवल पे बिजनेस को समझते हैं, हम आपके एक डिसीजन को चेंज करा के भी एक कॉल में 50 लाख करोड़ रुपए भी बचा सकते हैं। एंड यूज क्या है आपका? जो 2 करोड़ के प्रोडक्ट में चाहिए वो 50 लाख के प्रोडक्ट में लोगों को नहीं चाहिए, बट एंड यूज सॉल्व होना चाहिए। दिखने में बड़ा सुंदर पर काम का नहीं है तो किस चीज का? ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली। तो अमोल भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक समराइज करना है कि एक व्यक्ति जिसको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आना है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट पिवट्स हैं? जैसे भी आपने बोला बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे व्हाट आर द एसेंशियल पिवट्स फॉर अ डेवलपर हु हैज जीरो एक्सपीरियंस टू गेट इनटू इट? सबसे एसेंशियल है रियल एस्टेट में लीगल का, अपने शहर का नॉलेज लेना। सो पहला पिवट अंकुर भाई मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी है वो है लीगल का सही नॉलेज आपके शहर में। आज लोग रियल एस्टेट में मल्टीपल सिटीज में इसलिए भी नहीं जा पा रहे क्योंकि भारत के हर स्टेट, मैक्सिमम हर सिटी में अलग अलग तरीके से रियल एस्टेट को गिना जाता है। कहीं स्क्वायर फीट में होता है, कहीं मरला चलता है, कहीं बिस्वा चलता है, कहीं स्क्वायर मीटर चलता है, कहीं बीघा चलता है। करेक्ट। आपको पहले तो लीगल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज और डोमेन नॉलेज, ये 3 चीजें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजी, डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई सिंपल मुझे इतना कहना है, अगर आप एक प्लॉट का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, लैंड डेवलपर बन रहे हो, तो भाई लेआउट सैंक्शन प्लान क्या होता है, कैसे आता है, किस अधिकारी से वो मिलता है, ये पूरा नॉलेज चाहिए। एक अगर फ्लैट स्कीम शुरू करो, सिंगल अपार्टमेंट क्यों ना हो, तो भाई एक फ्लैट स्कीम सैंक्शन कैसे होती है, कहां से होती है, फ्लोर सैंक्शन प्लान क्या होता है, ये सब नॉलेज ही नहीं होगा। सुपर बिल्डअप कारपेट, देखो आर्किटेक्ट्स अच्छे होते हैं लेकिन वो आपका प्रोजेक्ट सफल बनाने की गारंटी नहीं ले सकते, वो सिर्फ एक डिजाइन दे सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, जब तक आपको वो नहीं समझता कि मेरा 2 BHK में कितनी बालकनी होनी चाहिए, 3 BHK में कितनी एमिनिटीज, तब तक आप एक सही प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं कर सकते, न बना सकते। सो ये सबसे बड़ा पिवट जो लीगल है। और इसके अलावा क्या पिवट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? फिर उसके बाद कभी कभी लीगल में बड़ा अच्छा होता है व्यक्ति, लेकिन फेल हो जाता है, वो मार्केटिंग ही नहीं कर पाता, लोगों को बता ही नहीं पाता। मैंने देखा आज भी लोग शर्माते अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने, बना बहुत अच्छा है बट लोगों तक नहीं पहुंचते।
मैं एक बहुत बड़े डेवलपर का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा एक ऐसे देश से मेरा 5 करोड़ का माल बिका जिस देश का मैंने नाम भी नहीं सुना, वो देश का व्यक्ति मेरे पास आया मेरा कंटेंट देख के। वाह। तो भाई समझो, मार्केटिंग करना, लोगों तक चीजों को पहुंचाना, लोग बड़े शाय होते हैं, डरते हैं, दे डोंट हैव अ कोच विद देम जो उनके उस डर को तोड़ सके और उनको सामने ला सके। और कई साल ऐसे ही निकल जाते हैं और वो फिर जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो बहुत सारे ऐसे हैं, लीगल हो गया, मार्केटिंग हो गया, फिर सही कंस्ट्रक्शन का नॉलेज। पता चला आपका हर टीम मेंबर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है क्योंकि आपको समझता ही नहीं है। फिर बनने के बाद क्या कर लोगे आप, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। करेक्ट। तो सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं और पैसा लगा दोगे तो सफल बिल्डर बनोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्यूटीफुल। सो मींस लीगल, मार्केटिंग, टेक्निकल, ये 3 चीजें तो ऐसी हैं जो आप बोलोगे कि एक बडिंग रियल एस्टेट डेवलपर को तो मास्टर करना बहुत जरूरी है। तो भाई, व्हाट इज द सेफेस्ट फंडिंग स्ट्रेटजी फॉर अ बडिंग रियल एस्टेट डेवलपर? देखिए, सेफेस्ट है मेरे हिसाब से, पहले 1-2 प्रोजेक्ट में पूरा पैसा अकेले मत लगाओ। अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग मत ढूंढो, अपने से अलग स्किल रखने वाले लोग ढूंढो। अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो 2 मार्केटिंग के बंदे सिर्फ मार्केटिंग ही कर सकते, प्रोजेक्ट बनाएगा कौन? करेक्ट। पार्टनर ऐसा ढूंढो रियल एस्टेट में जिसके पास आपसे अपोजिट स्किल्स हो। ब्यूटीफुल। ऐसे 2-3 लोगों को लेकर कुछ पैसा लगाकर एक प्रोजेक्ट बनाओ। अगर पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल गई तो 4-5 प्रोजेक्ट में साथ चल जाओ। वरना समझ में आ गया कि आपसे मैच नहीं हो रहा है तो पहले 1-2 प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया होता है टेस्ट करने के लिए। कम पैसे लगाकर 1-2 प्रोजेक्ट अच्छे बनाओ और फिर जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर ज्यादा फंड इन्वेस्ट करो। और अगर आप पुल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन गए कि दुनिया आपको जानने लग गई, आपका प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट बहुत दमदार हो गया, तो लोग पैसा लेकर खुद आपके पास आते हैं कि मैं पैसा लगाना चाहता हूं आपके साथ क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है और दुनिया का हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आप तक पैसे लेकर आता है। ब्यूटीफुल। मींस क्या आपने एक वीडियो बनाई थी कि बिना पैसे के आप डेवलपर बन सकते हो, वो कैसे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर आप रियल एस्टेट मार्केटिंग को जानते हैं, अगर आपने रियल एस्टेट में एज अ चैनल पार्टनर अच्छे पैसे बनाए और अगर आपने 2-3 बिल्डर्स के साथ बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया, तो आप चाहो तो उन्हीं से बात करके 10-20% के इक्विटी पार्टनर भी बहुत इजीली बन सकते हैं। और वो 10-20% पैसा भी आपका ही कमीशन जो उस बिल्डर के पास रखा हुआ है, उसके लिए सबसे इजी डिसीजन होता है आपको 50 लाख देने के बजाय अगले प्रोजेक्ट में 20% तेरे ही 50 लाख रुपए लगा दिए। ब्यूटीफुल। वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है कि जेब से ज्यादा पैसे न लगते हुए आपकी मेहनत का पैसा जरूर लग रहा है। बट जो आपका एक ड्रीम था कि भाई मेरा भी 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए लैंड तो 2 करोड़ की लेनी पड़ती है। 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में 6 करोड़ का कंस्ट्रक्शन या 5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन होता है। सैंक्शनिंग 50 लाख रुपए मिलाकर 2.5 करोड़ तो इजीली बच जाते हैं। अब 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट या पैसे कमाने के लिए 10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उतना डिसीजन लेना सीखना पड़ता है कि कम पैसे लगे और मैं कुछ इक्विटी में आ जाऊं, ताकि हिम्मत से फिर मैं आगे प्रॉफिट को देखते हुए और डिसीजंस ले पाऊं। सो दिस इज द वे वी हैव प्रैक्टिस्ड। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं कुछ % का इक्विटी का पार्टनर बन पाया इसी स्ट्रेटजी के तहत। वाओ, दैट्स सो critical and essential to know. And it is possible in tier 2 and tier 3 city very easily. Yes. पहले ये समझो भारत के किस शहर में ये हो सकता है। करेक्ट। तो मूल भाई, अगर कोई व्यक्ति अपना पहला प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो क्या एक चीज ऐसी होगी जिसके ऊपर उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए? 2 चीजें कहूंगा मैं। एक, पहली तो क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाए चलेगा, लेकिन आपका नाम बनेगा आपके पहले प्रोजेक्ट से। दूसरा, क्वालिटी के अलावा ये ध्यान रखिए कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो सही हो। कि वो जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं, अगर 19 बोल रहे हो तो 20 दो, एक चीज ज्यादा दो, कम मत करना। अगर आपने क्वालिटी अच्छी रखी और अपने कमिटमेंट को निभा लिया तो आने वाले समय में गारंटी से लोग आप तक आएंगे। वाह, मतलब आप कह रहे हैं ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर मत करो। यस, ओवर कमिट करो और ओवर डिलीवर करो। ब्यूटीफुल, नाइस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो 2500 साल का एक्सपीरियंस 100 से ज्यादा सीईओ से बात की है, उनका एक ही कहना था जो मैं आपको निचोड़ के बता रहा हूं। वाह, दैट्स सो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ विजडम। तो मोल भाई, जिस तरीके से आपने बहुत ब्यूटीफुली तीनों एक डिफरेंट सेगमेंट्स फ्रॉम लार्ज टू मिड टू स्मॉल के ऊपर अपने इनसाइट्स शेयर किए, कुछ चीजें ऐसी जो जब मैं डेवलपर से मिलता हूं तो मुझे उनके अंदर कुछ कॉमन दिखती हैं। वो कॉमन थ्रेड है जो मुझे दिखता है। जैसे पहला एक बड़ी कॉमन चीज है कि दे डू नॉट वांट टू कम ऑन मीडिया, दे डू नॉट वांट टू बी द फेस ऑफ देयर ब्रांड, वेयर एज आई हैव सीन मेनी डेवलपर्स, जैसे अगर हम बात करें कि मिडिल ईस्ट के रिजवान जी की जो डैन्यूब में, तो भारत में हमारे भारत में हिरनंदानी जी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि अब दे आर बिकमिंग देयर फेस ऑफ द ब्रांड। तो
इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, दो जेन्युइन रीजंस होते हैं जो लोग समझ नहीं पाते साइकोलॉजिकल लेवल पे कि क्यों जरूरी है और वो क्यों नहीं आते। पहला, जरूरी इसलिए क्योंकि हर बड़ा ब्रांड अब चेहरे के हिसाब से पहचाना जाता है कि इसके पीछे खड़ा कौन है। Beautiful. तो अगर आप खड़े नहीं होगे तो प्रॉब्लम है, लोग आपको पहचानेंगे नहीं। फेस बनना कंपनी का जरूरी, बट ये भी एक बहुत लॉजिकल सवाल है कि लोग करते क्यों नहीं। इसमें दो चीजें होती है, एक, या तो आप बचपन से बहुत शाय नेचर के और वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे और किसी ने आपके वो बिलीव्स को आज तक तोड़ा नहीं। वाह। दूसरा, उससे भी बड़ा रीजन है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठा है आपका आपके प्रोडक्ट को लेकर डर। अगर आपका अपने प्रोडक्ट पे 100% कन्विक्शन है, आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है और आप क्लैरिटी से लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में विचार को पहुंचा सकते हो, तो फिर तो आपको 2000% लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को लेकर आना ही चाहिए। पर कहीं ना कहीं अगर डर है, कोई गिला शिकवा है या कुछ भी मन में है किंतु परंतु चल रहा, तो लोग सामने आने से डरते हैं कि ये तो डिलीवर कर दूंगा, अगले का कोई भरोसा नहीं है। करेक्ट। 3 में से 2 तो ठीक चल रहे हैं, वो 1 नहीं है। और कुछ लोग ना अपनी कमजोरी को अपना ढाल बनाने की कोशिश करते हैं, बड़े लोग थोड़ी सामने आते हैं, वो कोई एम्प्लॉय कर लेगा। करेक्ट। ये सब तरीके के प्रैक्टिकल चीजें मैंने बहुत सारे सीईओ से इंटरेक्ट करके, बिल्डर डेवलपर से समझिए, सीखिए, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो डेवलपर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसका क्या नजरिया होना चाहिए टुवर्ड्स चैनल पार्टनर, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, ये टॉपिक मुझसे बहुत दिल से जुड़ा है क्योंकि मेरा पर्पस ही है भारत में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। मेरा मिशन है भारत में 1 लाख एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट करे तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, एक डेवलपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति है तो वो चैनल पार्टनर है। नो डाउट उसके एम्प्लॉयज भी है, लेकिन चैनल पार्टनर क्यों है? वो बेचारा आपसे सैलरी नहीं लेता, फिर भी आपके लिए काम करता है। एक एम्प्लॉय 90% 10 से 6 का जॉब करता है, 7 का जॉब करता है, लेकिन चैनल पार्टनर 90% केसेस में सुबह 6 बजे भी आपके लिए चेक पिक करने जाता है, रात को 10 बजे भी विजिट कराता है। और ये इंटीग्रल पार्ट है इस इंडस्ट्री का। एक बहुत बड़ी कंपनी के रीजनल हेड थे और उन्होंने मुझसे कहा था, अमोल भाई, हम चाहते नहीं कि हमारा चैनल पार्टनर बहुत स्ट्रांग बने, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बना दिया कि उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास लोग हैं। उसका कारण बस यहाँ तक लाना, क्लोजिंग हम कर देंगे, हम समय पे पैसा देते हैं, इसलिए लोग हमसे जुड़े रहते हैं। बट ये छोटा बिल्डर नहीं करता। उसकी टीम के लोग या उसके फैमिली के लोग या उसके पैरेलल डायरेक्टर चैनल पार्टनर की वाट लगाने में लगे रहते हैं। करेक्ट। कि इससे ना बिके, हमारी टीम से बिके, ताकि कमीशन बचे। ये माइंडसेट जब तक रहेगा तो तुम चिंदी चोर ही बिल्डर बनोगे। भाई, आप कितने प्रोजेक्ट पे खुद की टीम रख लोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 10? अगर आपको सच में बड़ा बनना है तो आपको यू नीड पीपल दोज हु हैव एक्सपर्टाइज, दोज हु हैव लोकल कनेक्शंस। और मैं तो चैनल पार्टनर्स को बोलता हूं कि अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि ये वर्ड को भी आप झूठ कर दो कि भाई आपको जरूरत ही ना पड़े उनके एम्प्लॉइज की भी। अगर आपको लीड जनरेशन, विजिट, क्लोजिंग, कंटेंट सब कुछ आने लगा जो हमारे गेम चेंजर चैंपियंस करते हैं, जो लॉन्च पैड के हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, जो करोड़ों का टर्नओवर करके बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स है। स्किल डेवलप करो, स्किल पे फोकस करो। और बिल्डर डेवलपर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, प्यार बड़ा ग्रुप क्या करता है? चैनल पार्टनर को ये ऑफर, वो ऑफर, सिंगापुर का टूर, मालदीव्स का टूर, मर्सिडीज क्यों देता है? भाई वही माल बिकाएंगे तो आपका पैसा निकलेगा। करेक्ट। अरे पर्सनल रेफरेंस पे जो माल बिका है वो सेल नहीं है। 3 पार्टनर मिलके अगर 100 फ्लैट 200 में से बेच दे अपने पर्सनल रेफरेंस पे, तो वो कोई सेल थोड़ी हुआ। उसको आप पे विश्वास था, आपके बंदे ने समझा, खरीद लिया। सेल तो हुआ जब आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, दुनिया से उसको उठा के लाकर बेचना, वो करता है चैनल पार्टनर। ब्यूटीफुल। तो उसका रिस्पेक्ट तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होना ही चाहिए आगे जाकर। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कहते हैं कि चैनल पार्टनर किसी का सगा नहीं होता, ये लाइन मैं बहुत सुनता हूं एक डेवलपर के मुंह से, ऐसा क्यों? देखिए, उसे अपना घर चलाना है, वो 4 प्रोजेक्ट इसलिए रखता है कि उसके साथ अलग अलग क्लाइंट आते हैं। इसका भी सॉल्यूशन है ना, मैंडेट फॉर्म्स। आप ऐसे फॉर्म्स को जोड़ो जो डेडिकेटेड 5-10 एम्प्लॉय आपके साथ, आपके लिए ही काम करे, आपके प्रोजेक्ट पे ही बैठे और आपका ही प्रोडक्ट बेचे। और अगर आप उनको टारगेटेड डिलीवरी एग्रीमेंट या एमओयू में लिखकर दे रहे हो तो वो तो आपके एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता कि आपको एक बहुत अच्छी मैंडेट फॉर्म मिल जाए जिसके पास टैलेंटेड ट्रेन टीम मेंबर्स हो, जो सर्विसेज दे फुल टाइम सैलरी पे चैनल पार्टनर्स को।
इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो फिर वो सिर्फ आपके लिए काम करेगा, वो पूरी दुनिया के लिए नहीं करेगा। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, समय पे पैसे देंगे, जरूरत पड़ने पर उसके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो वो मैंडेट फर्म हमेशा आपके लिए ही काम करेगी। तो एक मैंडेट कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने से पहले क्या ऐसी 3 चीजें जो एक डेवलपर को जरूर दिमाग में रखनी चाहिए? बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत फेमस वीडियो भी है हमारा कि एक बिल्डर डेवलपर एक मार्केटिंग एजेंसी को कैसे सेलेक्ट करे, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले तो उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने सच में बेचे। ओके। दूसरा, जो प्रोजेक्ट बेचे क्या उनकी रिकवरी भी हुई है? सिर्फ बेचे नहीं है, कुछ मार्केटिंग एजेंसी, चैनल पार्टनर फर्म सिर्फ टोकन के भरोसे अपना नाम चलाने से नहीं होगा। एग्रीमेंट होना चाहिए, सैलरीड होनी चाहिए, पूरा पैसा भी आना चाहिए, उनको भी कमीशन तब निकलेगा, आपको भी प्रॉफिट तब होगा। तीसरा, उनका खुद का कोई ऑफिस और खुद की कोई टीम भी है कि नहीं। जब उनके पास परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे, उनके पास कुछ खुद का सपोर्ट सिस्टम होगा। मान लो उनके पास बैक ऑफिस में लोग हैं, प्री सेल्स की टीम है, डिजिटल के बंदे हैं, एडिटिंग की टीम है, खुद का बड़ा ऑफिस है, कंप्यूटर्स है, इसके पहले वैसा ट्रैक रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, वो आपके सोशल मीडिया के साथ साथ लीड जनरेशन सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, इतनी बड़ी कैपेसिटी है। ऐसे बड़े प्लेयर्स ही आपको सोल मैंडेट जैसी सर्विसेज दे सकते हैं। 2-4 लोग जमा हो गए, 4-5 चैनल पार्टनर बोलेंगे हम आपके लिए सोल मैंडेट काम कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं, और हुआ तो वो बिल्डर फंस जाता है, क्योंकि उसकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है। पर जिस पर उसने विश्वास किया उसके पास ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं है, बैक ऑफिस की टीम नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं है, सिर्फ बातों में ही काम चलता है 1-2-3 साल तक। तो ये सब चीजों को देखकर आप एक अच्छे सोल मैंडेट फॉर्म या चैनल पार्टनर फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं एज अ बिल्डर डेवलपर। तो भाई, एक डेवलपर अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है अगर मार्केट बहुत क्राउडेड हो तो? देखिए, डिफरेंशिएट करना है तो पहले आपको अपनी यूएसपी समझनी पड़ेगी। जब तक आपको खुद की यूएसपी नहीं पता कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, और वो यूएसपी बनती कहां से, शुरुआत होती है फिर रिसर्च से। डिजाइनिंग से पहले ही प्रोडक्ट में ऐसी चीजें डालो कि लोग, जैसे 3 BHK में 4 BHK का मजा कैसे पॉसिबल है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सके ना कि आपका एक लग्जरियस टावर है जिसमें 1 फ्लोर पे एक फ्लैट है, तो सिंगल फ्लोर का फील आ जाए, और आपने एक सैंक्शनड गेस्ट रूम दिया हुआ है छोटे से अपार्टमेंट में भी, तो ले तो 3 BHK रहे हो, 6 फ्लैट है, लेकिन साथ में एक अपार्टमेंट का मजा है, तो 4th वाला बेडरूम मिल गया, गेस्ट रूम। और अगर टेरेस पे भी एमिनिटी, एक छोटे से इंडिविजुअल टावर में भी यूएसपी हो सकती है। बड़ी टाउनशिप में तो 1000 तरीके, मैंने आपको छोटे से टावर में भी बता दिए। जो आपको 1 करोड़ के फ्लैट में नहीं मिलता, वो आपको 80 लाख के फ्लैट में मिलेगा। हम आपको सेपरेट वार्डरोब के लिए रूम देंगे। जब आपकी डिजाइनिंग रिसर्च बेस्ड होती है, रूम के साइजेस परफेक्ट होते हैं, एमिनिटीज होती है, वो बनती है आपकी यूएसपी मार्केट। कभी कभी आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आपकी यूएसपी हो सकती है। दुनिया 60 साल या 40 साल के लिए बोलती है मेरी बिल्डिंग 60 साल टिकेगी, ऐसा लोहा मैंने यूज किया। स्ट्रक्चर पे कर सकते हो, 50 तरीके अपने प्रोजेक्ट की यूएसपी को डिजाइन करने के। अब अमूल भाई, हम यूएसपी की बात करें तो बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, लोग यूएसपी रिसर्च करके बना लेते हैं, बट उस यूएसपी को सेल्स टीम कम्युनिकेट नहीं कर पाती। एग्जैक्टली राइट। यहाँ मार्केटिंग टीम बहुत वीक होती है, और जो डायरेक्टर है, ओनर है, वो खुद भी कम्युनिकेट नहीं करता, तो टीम कैसे करेगी? हायर लेवल से शुरू होता है भैया, अच्छा या टॉप से बॉटम आती है, हर चीज टॉप से बॉटम आती है। जब ओनर बार बार ये चीज को बोलता नहीं है, तो बाकी टीम कैसे बोलेगी? मेरा तो कहना है, अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी है तो उसको भी आपकी यूएसपी पता होनी चाहिए। वाह, तब जाकर आप ब्रांड बना पाओगे, नहीं तो ब्रांड बनेगा कैसे? So your USP should get repeated again and again in the mind of a client. That is the most important thing what I feel. तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो एक माइंडसेट लेवल पर क्या शिफ्ट है जो आप बोलोगे कि एक रियल एस्टेट डेवलपर को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला शिफ्ट तो ये है एक्सेप्टेबिलिटी। जो आता है उसे एक्सेप्ट करो, जो नहीं आता है पहले क्लैरिटी लाओ। वाओ, ओके। इल्यूजन में जिंदगी बिताकर बड़े प्लेयर आप बन नहीं सकते। क्लैरिटी लाकर जब आप चीजों को सीखेंगे, सही कोच, मेंटर, गाइड रखेंगे। देखो, महाभारत में इतनी बड़ी कौरवों की सेना थी, दुर्योधन के पास, अर्जुन के पास सिर्फ कृष्ण थे। करेक्ट। तो असली कोचिंग तो आज से 10,000 50,000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। करेक्ट। जब सही कोच, मेंटर आपके साथ होता है, सही गाइडेंस देता है, और आप सही एक्शंस लेते हो। कई बार आपको सब कुछ पता होते हुए आप नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं, जिम लगाने से बॉडी नहीं बनती, जिम जाकर एक्सरसाइज करने से बॉडी बनती है। ट्रू। सो यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्न। व्हेन यू विल इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्न, आपको सफलता की गारंटी धीरे धीरे मिलने लगती है। तो अमोल भाई, बहुत सारे एक डेवलपर्स के, जब मैं उनसे बात करता हूं तो देयर आर लॉट ऑफ बिलीव्स व्हिच दे रियली नीड टू अनलर्न। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है, और आप इन बिलीव्स को कैसे उनको अनलर्न कराते हो? देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। हम क्लैरिटी कॉल जब करते हैं किसी के साथ, तो यही क्लैरिटी करते हैं कि आपको क्या पता है, आपको क्या नहीं पता है। जब आपको जो नहीं पता है, क्या आपको लगता है कि वो आपको सीखना जरूरी है? नाइस।
सो वी आर वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, इसलिए लोग पसंद करते हैं पूरे एशिया में। और हम टूल सिस्टम्स भी इतने सिंपल देते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट नहीं है ऐसे डिफिकल्ट कि भाई आपका एम्प्लॉय तक ना समझ पाए तो आपका बाकी लोग क्या समझेंगे। अगर आपका पढ़ा लिखा एम्प्लॉय भी आपका फॉर्मेट ना समझ पाए तो फिर रियल एस्टेट में तो 50% से ज्यादा अनस्किल्ड लोग भी आपके साथ काम करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सो व्हाई नॉट टू मेक इट सिंपल एंड सस्टेनेबल। तो उस मेथड से काम कराते हैं, इसलिए लोगों को पसंद आते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं। नाइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल्स जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है और उनको माइंडसेट लेवल पर क्या शिफ्ट करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहला शिफ्ट तो यही है कि रियल एस्टेट बाकी प्रोडक्ट जैसा नहीं है। ओके। ये व्यक्ति खरीदता है पूरी जिंदगी में एक या दो ही बार। तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा। आप लायक व्यक्ति से ही प्रोडक्ट खरीदते, किसी से भी नहीं खरीदते। जब तक सामने वाले को कंपनी पे और बेचने वाले पे ट्रस्ट नहीं आता, आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं है, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं, आपका कोई खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है, लोग आप पे ट्रस्ट कम करेंगे। एक माँ बाप आपके पास प्रोडक्ट लेने आए, बट माँ बाप का डिसीजन मेकर बैठा है सिंगापुर में जो 5 लाख रुपए महीना कमाता है। अब माँ बाप उससे कहते हैं कि हम ये खरीदना चाहते हैं, तो पहले पूछता है कौन सी कंपनी और किससे खरीद रहे हो। जब ये दोनों इन्फॉर्मेशन माँ बाप दे पाते हैं तो वहां से चेक भेजता है। यस। तो ये सब चीज लोगों को समझ ही नहीं आती कि उसके लिए आपको कितना मेहनत और काम करना पड़ेगा कि लोगों को आप ट्रस्टेबल लगो, चाहे आप एक फुल टाइम एम्प्लॉय क्यों ना। कई एम्प्लॉयज हमसे कोचिंग लेकर कई गुना बिजनेस दे चुके हैं और अब तो बड़ी बड़ी एजेंसीज खुद की डाल चुके हैं, क्योंकि पहले उनको ही उनकी पोटेंशियल नहीं पता थी। वाओ। तो मतलब अपने पोटेंशियल को खुद रियलाइज करें और कहीं ना कहीं ज्यादा ट्रस्ट वर्दी बनने के लिए जो अपने अंदर जो चेंजेस करने हैं वो उनको करना जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये आपकी उनके लिए एडवाइस है। करेक्ट। यस। और वो भी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड किसी ऐसे एक्सपर्ट जिसे सच में बेचा हो, जो व्यक्ति दुनिया में ये ना बता सके कि अगर हस्बैंड वाइफ बैठे और वाइफ ने एक इशारा किया और हस्बैंड चला गया और डील नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ओह नाइस। यस। ये वही बता सकता है जिसने 1000 क्लाइंट के साथ डील की। तो क्या आप रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल्स को भी कोच करते हो और किस तरीके से कोच करते हैं उनको? 100%। हम लेवल 1 लेवल 2 पे उन्हीं के साथ काम करते हैं। वाह। एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर्स एंड रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल्स। ओके नाइस। वो 1.5 से 2 महीना हमारे साथ रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड की लाइव ट्रेनिंग करते हैं। सब लाइव होता है, हम रिकॉर्डेड पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। हम प्रैक्टिसेस कराते हैं, स्किल्स बिल्ड करते हैं। 2 महीने में उनके अंदर वो स्किल्स बिल्ड होती है कि वो एवरेजन 2 से लेकर 10 बुकिंग तक 2 महीने में ही कर लेते हैं। वाह। और फिर वहां से वो अपने आप को तैयार करते हैं सेल्स लीडर के लिए, मार्केटिंग हेड के लिए, प्रोजेक्ट लीडर के लिए, मार्केटिंग एजेंसीज के। दिस इज द इकोसिस्टम व्हाट वी हैव। वाह। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति एक रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल, मान लीजिए अगर एक रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल अगर वो जस्ट अपने करियर को स्टार्ट कर रहा है, तो वो अगर इस कोचिंग को एनरोल करता है तो आपको क्या लगता है वो अपने करियर के अंदर क्या शिफ्ट कितने समय में अनुभव कर सकता है? हमने देखा है कि जो 10-10 साल में लोग नहीं कर पा रहे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, हमारे साथ काम करने वाले बंदों ने 6 महीने से 1 साल में अचीव कर लिया। वाह। क्योंकि उन्हें वो प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ गई है। इनफैक्ट कई ऐसे लोग जो पार्ट टाइम रियल एस्टेट को कर रहे हैं वो भी अच्छा कर लेते हैं चीजों को सीख कर समझ कर। क्योंकि रेफरल पार्टनर के भी मॉडल होते हैं। आप किसी एक्टिव बंदे से जुड़ जाइए, सही लीड दे दीजिए, लीड जनरेट करके प्री सेल्स करके दे दीजिए, वहां से पैसे बना लीजिए। तो वी हैव सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस। हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जो मिड सेगमेंट करियर शिफ्ट करते हैं, जैसे 50 साल के हो गए, 20 साल कंस्ट्रक्शन में थे, अब मार्केटिंग में आना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे रिटायर्ड लोग भी हैं जो 60 के बाद हमसे रियल एस्टेट सीखकर 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बीच में कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट भी हमसे आए थे ट्रेनिंग लिए, वो एक डायरेक्टर है देहरादून में एक प्रोजेक्ट के। ऐसे कई कंपनीज के लोग हमको अप्रोच करते हैं, सीखते हैं, अच्छा करते हैं, और यही तो मिशन है। तो क्या लेट्स से अगर किसी ने कॉलेज पास आउट, तो क्या एक कॉलेज पास आउट क्या एक रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल बन सकता है? 200% बन सकता है। ओके। रियल एस्टेट सेल्स के लिए आपको 3-4 चीजें आनी चाहिए। पहले ठीक ठाक पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का नॉलेज। अगर आज के जमाने में आपको टेक्नोलॉजी समझती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज समझता है, लीड जनरेशन आता है, साथ में आपको विजिट, प्री सेल्स और क्लोजिंग की चीजें आ जाती है, तो आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट भी मैंने लोगों को देखा इंजीनियरिंग करते हुए, एमबीए करते हुए भी एज ए चैनल पार्टनर अच्छा पैसा बनाते हैं। वाह। मतलब करते हुए साथ साथ आप कह रहे हैं कि साथ भी होता है। और फिर जब उनको पसंद आ जाती है फील्ड, तो फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद फुल टाइम इस फील्ड में आ जाओ। अगर आप देश की सबसे बड़ी कंपनी उठाएंगे तो उसमें सबसे बड़े पैकेज जिनको मिलते हैं रियल एस्टेट में, वो तो बड़े बड़े एमबीए कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं। करेक्ट। इनफैक्ट आई एम वेरी टचवुड कि आज जितने बड़े इंस्टीट्यूट आपने सुने होंगे आज तक, IIM, IITs, हार्वर्ड, मैक्सिमम जगह से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ चुके जो वहां की डिग्री लेकर रियल एस्टेट हमसे सीख रहे हैं। नाइस। क्योंकि दे हैव एसेट्स, दे हैव मनी, दे हैव ओल्ड बिजनेसेस,
या फिर उन्होंने जॉब में इतने पैसे 15 साल में बना लिए कि अब रियल एस्टेट में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक यूएस के से 13 साल रहकर एक मैम आए हैं जो हैदराबाद से, वो बड़े इन्वेस्टर है और लैंड डेवलपर बन रहे हैं, हमसे कोचिंग ले रहे हैं। और आई हैव इन्यूमरेबल एग्जांपल्स लाइक दिस, जो एक बहुत अच्छी जिंदगी किसी और कंट्री में जीकर वापस आ रहे हैं और रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड नॉलेज, सो दे नीड एन एक्सपर्ट और अ कोच विद देम to take them to a next level. So Amol bhai, since you have an ocean of knowledge, I have a rapid fire round with you. So, and in that you would have to answer me either in one word or one line. That's about it. Okay. So my first question to you is, what do 90% of the developers get wrong in one line? Quality. Okay. One thing every developer must unlearn today. That they know everything. That's correct. One habit that separates a successful developer from a struggling one. A strong mindset. Okay. One mistake that destroys a project before it starts. When he thinks that whatever he thinks is right. Okay. One thing a developer should never compromise on. Legality, quality and customer satisfaction. Awesome. One advice for a first-time developer. You can become a game changer if you follow a right track. Okay. One thing a new developer should avoid like a disease. Over expansion without proper planning. One skill every new developer must master first. Learning ability. Yes. One blind spot mid-level developers always miss. Power of making a team. आप इधर ही देख के बोलो, आपको उधर हाँ ठीक है. One change that can double their sales velocity. Leveraging the power of channel partners. One system they must build immediately. System of having right people at right place. Yes. For a large scale developer, what is that one weakness? Yeah, first of all, one weakness even big developers suffer from. Lack of communication. One culture rule big developers must follow. Make an army. One trigger that instantly increases buyer trust. How much visible you are in the market. Wow. Why is it important for a developer to be the brand face? It increases the credibility and trust of a buyer. One closing technique that works in every market. Solving the right problem. Awesome. One thing sales team overestimate. Number of deals. What are the KPIs which a developer must track to increase sales velocity? Number of leads, number of visits, number of closings, and customer satisfaction ratio. Awesome. One non-negotiable thing in land selection. Location and future development. Okay. One product feature that sells in itself. Solving the problem of your client. And what is that one design element that always delights buyer? When he gets something what he hadn't believed that I'll get on at this price range. Okay. One book every developer must read. Hyper Focus. Hyper Focus. Okay. Yes. And I would definitely recommend the RGC. Real Estate Game Changer is a must read for every person, I feel. Because it is not my book, it is the book of 50 CEOs, those who have given more than 10 years to 50 years of their life in real estate industry. Wow. So what is that one myth about real estate you want to destroy? That real estate is an unorganized field. Now real estate is an organized field. Slowly it is changing, and I am 200% sure that in the next 10 years we will get top of the top players. See the amount of value real estate is contributing in our country GDP. Yes. So how do you see real estate in 2035? One of the biggest, real estate is still second biggest employer of our country. It can become the first as well. Wow. Top 3 cities where you see extreme boom coming up. Might be possible that Colliers and all big companies were saying that the tier 2 cities can grow a lot. And the research says that Jaipur, Nagpur and Lucknow are one of the best bets in terms of infrastructure development, and the future projects were considered. One line advice for every real estate developer. Learn things, implement in a faster way, make mistakes, but don't repeat the mistakes. Okay. And one last advice for real estate sales professionals. Solve the problem, people will come to you to buy. And one last piece of advice for channel partners.
that you are the face of the product. So understand the product first as a buyer and then tell to others. Beautiful. Thank you so much, Dr. Amol. It was, I think for me, it was not a podcast. I would say it was a masterclass for me. I learned so many things out of this whole couple of hours conversation, and I still want to continue because there are so many things I really want to genuinely learn from you, because I'm passionate about this real estate sector and keep often meeting developers. So I definitely personally have learned so many things in last 2 hours that I would love to share this wisdom. And in fact, all those of you who have watched, I would definitely want you to put your thumbs up and definitely do share with more and more people, because this value packed session was filled up with a lot of golden nuggets, which has come not from just his learning, but from the learnings of so many CEOs, so many CXOs, who have practiced and been there, gone and dusted for 10 years, 20 years, 50 years in this real estate sector. So that entire thousands of hours of research, PhD research, has been packed for you only in couple of hours, and I'm sure that you're going to love this content. So thank you once again, Amol sir, for being here, for taking out your 2 hours, putting this entire, insightful conversation into a form of a podcast of Build Legacy. I'm truly grateful to have you. Thank you. Thank you so much, Ankulji, and to your team for this podcast, for asking such a wonderful questions, and to all the audiences who have seen till the end. I'll bet you on this, if you'll make a note about this, अगर आप इसे सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको जिंदगी में बहुत फायदा होगा. और आप बहुत डिटेल में और जानना चाहे तो डॉक्टर अमोल मौर्य रियल एस्टेट कोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत सारे ऐसे वीडियो जो एशिया में क्या वर्ल्ड में किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे, 1200 से ज्यादा रियल एस्टेट का प्रैक्टिकल कंटेंट आपको वहां अवेलेबल होगा, वो भी देख सकते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन टू एवरीवन.